Yeah, so good evening, everyone. Today we have gathered here to discuss one topic regarding this convolutional neural networks. And I hope that all the students, you must have attended NLP session yesterday, and also you had attended Prashant Singh Rana sir's session. I was there only. So I know that you have been given introduction regarding the machine learning, and yesterday you have implemented somewhat about sentiment analysis. If I am right, please write in the chat box. Did you implement the sentiment analysis in yesterday's session? Okay, okay, great. So in today's session, we will be discussing mainly about the CNNs and how they are applicable. So first of all, my introduction. I am Dr. Sahil Sharma. I am assistant professor in Thapar. My research work includes the work around CNNs and also around the RNNs. I have interest in even in the speech recognition and the audio process. So all those things I have personally worked on, and I have multiple research papers regarding those. So let's begin with the CNN, and let's see how the things work. So what is computer vision? Computer vision is actually the study in which we are helping the computer to see. So the same way that we are actually taught that how we should be, how we are how we are looking at things and how we understand the background and everything around us since childhood. So these are the different examples. These are the actual different variations of computer vision only. So in this, the first one, the semantic segmentation, इसमें क्या हो रहा है? We are actually highlighting the uh, someone is unmuted. Yeah, just a second. Can I mute everyone? Sonia ma'am, please mute yourself. Sonia ma'am. Hello, Sonia ma'am. Ma'am, I already mute myself. Hello, ma'am. Okay, so let's continue. Please keep yourself muted and only unmute if you have a query. And teachers, can you, please maintain all the students also. There are very few students right now. Please message everyone that more people should join. So, okay. So in this semantic segmentation, we are just highlighting one object out of the image. The exact boundaries are according to the object. In the second part, the classification, there are two things. The first thing is classification, just writing that there is a cat in this image. This is called classification. But when we are actually making this box, this is the bounding box. So if we are actually making the box around this cat, this is called localization. So I hope that the difference between these three is clear. The localization, classification, and the semantic segmentation. Object detection means that we are actually trying to exactly locate different objects within the image. So this is object detection. And instance segmentation means that within the image, what are the different objects? So we have to highlight each and every dog or cat differently. Okay. So then next thing is CNNs. And mainly CNN hota kya hai? CNN is the architecture. This is a deep learning architecture. In this we have different layers. I will be discussing the type of different layers within the CNN, but the applications should be clear. Applications are the actual motivation for us to understand this topic. We can use CNNs for face detection, emotion recognition, object detection, self-driving and autonomous cars, image captioning, biometric authentication, auto translation. So when we say biometric authentication, it just means that, for example, you are attending a class and you don't have to reply to the roll call, but your roll numbers or your faces will be attached to the system. Automatically, when you sit in the classroom, your attendance will be taken by the system because the system will recognize you and make your attendance and also map the time. So from A to B, how much time you were in the class. So all that will be done automatically. So all of these things can be done by CNNs. And
this is the basic architecture of a CNN. In this we have a input, and the convolution is done. So I am not having the annotation option here. I wanted to write few things here, but no problem. Uh, okay. So in this input, for example, we have the image. We are just highlighting one box out of it, one small part. Yeah. So someone has raised hand. Do you have a query? If you have the query, you can write in the chat box. So initially we have the input and we are actually convoluting over it. So let's say that we have a big image, for example, 100 cross 100, and we have a small filter 3 cross 3. So when we are going over that image at location one by one, so I will show you, for example, this will be a good example. For example, this is my big image, this 7 by 7 matrix, and we have this 3 cross 3 filter. So this is the filter. I'm showing you the small part first. So for example, this is my big image and I want to recognize that which digit it is. Here it is 4, right? And at 4, wherever 4 is, we have the pixel values 1111 everywhere, and all the other pixels are 0 in that box. And let's say that this orange box is my filter, which we have to convolute. Convolute means we have to go from left top corner to the right bottom corner, one by one, step by step. So if I have to overlap this orange box over the big image, I will have to do some multiplication element by element. So for example, this is just an example. It is not mapping to the previous image. For example, this light green box having 0 1 1 0 1 0, all these values will be multiplied element by element here. So 3 into 1 3, 1 into 1 1, 1 into minus 1, the value will be here. So the calculation will be like this. You will get this box, the final one. This is just one example of convolution over just one box of an image. And similarly, you will start from the first box, you will move to the next one step by step. So step 2 is we have just moved one step from the beginning, we are moving right hand side, next step, the third step, then again. So I'm skipping few things, I'm not putting so many slides, but this is how the calculation is being done. So depending on the current value of my highlighted green area, you have to multiply with the orange box and you will get some value. So whichever values you get here, you will do the summation and the calculation will be done accordingly. And one thing to notice here is we are getting the final matrix as a small size. For example, initially we had this 7 cross 7 box, but now we have 5 cross 5 only. When we convoluted 3 cross 3 box, this is my orange box. इसको मैंने अपने ओरिजिनल इमेज के ऊपर कॉन्वल्यूट किया और इन दी एंड मुझे जो बॉक्स मिला इट इज 5 क्रॉस 5. So this is a very important step. Just a second, I am looking at this. Okay, so I have got one question in the chat box. Sir, what are the best frameworks to practice these projects? So the frameworks, generally I would say as a beginner you should work on Keras. Keras is an API over TensorFlow, and I will show you those things later on, but initially I am just giving you an overview that how the convolution works. Okay, so I have done this. So the second, now the next step is, now that you have an idea that we are actually convoluting this orange box over my big image and my final image size is being affected. Initially we had 7 cross 7, having convolution of 3 cross 3, we are getting the size 5 cross 5. तो इसमें size छोटा हो रहा है, इतना basic सा हमें idea समझ में आ रहा है. Then there is one ReLU activation. So ReLU activation is just one of the activation functions. Activation functions are very helpful for us. इसका application मैं आपको बताऊंगा बाद में, but अभी के लिए मैं सिर्फ अभी आपको इतना बताना चाह रहा हूँ that what ReLU function is. So ReLU functions main funda is that you have to select maximum of 0 comma whatever the number is. So for example,
मुझे इस फर्स्ट बॉक्स का जीरो वाले पार्ट का जो सबसे पहला नंबर है, इसका मैंने रेलू के साथ फंक्शन लगाया है. सो आई विल डू मैक्स ऑफ रेलू, मैक्स ऑफ 0, max of 0, 0 again, max of 0, 2 here, max of 0, 3 here, max of 0, -1 here. So when I'm applying ReLU function, ReLU activation over my image, तो इसमें we are actually passing the maximum of 0, whatever the number is. तो यहाँ पे when we are doing the ReLU activation, we are actually getting the value 0 here, replacing this negative number. तो ReLU का जो हमारा main advantage है वो ये है that it will not pass any negative number. You are actually getting only the positive number 0 or any positive number which is elsewhere. So whichever numbers are 4, 6, 5, all these numbers are passed as it is, but the negative number has been converted to 0. So till now we have seen what the convolution is. ठीक है, एक तो convolution समझ में आ गया. Then we have also seen the ReLU activation, which is the most famous activation function. There are two other famous activation functions which we will use. One is sigmoid activation function and the other is softmax. तो जब वो आएगा मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको. But for now ReLU activation का इतना समझ में आ रहा है कि 0 और पॉजिटिव नंबर में से वो उठा लेगा. Negative number will not be picked. So result of ReLU activation function is that it has skipped those minus ones, जो minus वाले नंबर थे उनको सबको zero कर दिया है, and all the other numbers are available as it is. ठीक है. And there is one more concept called max pooling. So max pooling में क्या होता है? Max pooling is actually having, let's say अपने पास 2x2 का एक मैट्रिक्स है, तभी यहाँ पे 2x2 के 4 पार्ट्स हैं. वी हैव ग्रीन, ऑरेंज, पिंक एंड वायलेट. तो ग्रीन वाले एरिया में बिकॉज माई मैट्रिक्स इज 2x2, तो इसमें से मैक्सिमम नंबर सिलेक्ट हो जाएगा 1, 2, 5 और 6 में से. सो वी हैव 6 वैल्यू एज द आउटपुट. अगेन 3, 4, 7, 8 में से 8 वाला सिलेक्ट हो जाएगा, 9, 1, 4, 5 में से 9 वाला हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड मैक्स पूलिंग. एक बेसिक सा आइडिया हो गया दैट हम हर बार मैक्सिमम वैल्यू उठा रहे हैं. एंड इट कैन बी 3x3 ऑल्सो. अगर जैसे 2x2 यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इट कैन बी 3x3 ऑल्सो. सो 3x3 में क्या होगा दैट you will find the maximum of 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 1, 2. तो ये 3x3 की बाउंड्री बन जाएगी यहाँ पे and the maximum will be 9 out of those 3x3. तो डिपेंड करता है that what is the size of the max pooling filter. यहाँ पे max pooling का filter है ये 2x2 का. तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं और इसका फायदा ये होगा दैट वी आर एक्चुअली पिकिंग द हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट वैल्यू. अब इमेज के अंदर ना कॉन्ट्रास्ट होता है. जैसे पिक्सल का कोई भी नंबर है, पिक्सल कैन बी ऑफ रेंज 0 to 255. जितना बड़ा नंबर होगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी आर पिकिंग द बेस्ट possible value in case we are actually doing the max pooling. And can anyone tell me the advantage of max pooling? Just by looking at this idea, we have seen that 4x4 image has been shortened to 2x2. इसका फायदा क्या होगा? Anyone? Remove duplicates. Okay. What else? Okay, only remove duplicates. I have got the answer. So remove duplicates के अलावा ना एक ये भी होगा that we are actually shortening our number of parameters. तो जब हम train करेंगे model, we will look that when we have a very big image, तो उसको अगर आप half कर दोगे तो अपना जो model train होगा that will be so when a model is being trained, that will be helped when we have the smaller size. तो उसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा train. Makes it small to pick the maximum value, reduces cost, we are choosing the highest value. Yeah, so all of these things I have already told. Reduce cost, yes. So cost will be reduced क्योंकि आप उतनी ही processing कम करोगे जब अगला कुछ प्रोसेस करना होगा. मैक्स पूलिंग के बाद कहाँ आप उससे पहले 4x4 इमेज पे कर रहे थे, नाउ यू हैव ओनली 2x2. तो आपके पास प्रोसेसिंग कम करना पड़ेगा, कॉस्ट कम हो जाएगा. ये बिल्कुल सही आंसर है. सो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव 5x5 इनिशियल इमेज. ठीक है, ये 00230 02250. तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं मैक्स पूलिंग करूंगा भी, सो इट विल नॉट बी डन 2x2. अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये वाला 0002 हो गया, 2325 हो गया,
अब ये वाला अकेला रह जाएगा, तो इसलिए हम ऐसे केसेस में कभी कभी एंड वाली वैल्यूज काट भी देते होते हैं. इट कैन बी डन. एट लीस्ट इन दिस केस इट डिड नॉट अफेक्ट आवर आंसर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू 0 थे. एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आवर मैट्रिक्स वाज 5x5 whereas the pooling matrix is 2x2. In case where we have extra rows and columns, one of the strategies is to exclude them. तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है. प्लस यहाँ से एक आइडिया ये हो रहा है कि अपने पास इनका भी आपस में कोरिलेशन बनता है. सो वट एवर माई साइज ऑफ द फिल्टर इज, जैसे ये 2x2 का लगाया है, तो इट शुड बी मैप्ड विद माई ओरिजिनल इमेज साइज. तो उस हिसाब से हमें मैक्स पूलिंग का साइज देना पड़ेगा. अब ये हमें देखना पड़ेगा कि हम 3x3 लेके फायदे में रहेंगे, 2x2 लेके फायदे में रहेंगे. तो वो हमारा ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे आप ट्राई कर सकते हो. यू विल गेट द बेसिक आइडिया. एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया. प्रीवियसली वी हैव सीन कॉन्वोल्यूशन. तो इसमें यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, यहाँ पे नंबर्स हैं. बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है दैट जो ये ऑरेंज बॉक्स है जो अपने पास 3x3 था, अगर मैं इसको 5x5 कर दूंगा या 7x7 कर दूंगा, इन दैट केस माई इमेज विल, द फाइनल इमेज विल गेट ब्लर्ड. तो एक तो ये रूल है दैट वेन एवर यू आर डूइंग द कॉन्वोल्यूशन इट विल हैव टू बी एन ऑड नंबर इन साइज. तो जैसे ये 3x3 है, इट कैन बी 1x1, इट कैन बी 3x3, इट कैन बी 5x5. तो उस बेसिस पे ही ये चीज होगी. ठीक है, कॉन्वोल्यूशन में कभी भी हम इवन नंबर का कॉन्वोल्यूशन नहीं करते. ठीक है, और इसमें जो ये फिल्टर है 3x3 वाला, इफ आई हैव 5x5 और 7x7, जितना बड़ा फिल्टर होगा उतना ही ज्यादा मेरा फाइनल रिजल्ट जो ये आया था 0023-1 ये वाला जो आया था, उतना ही मेरा ये वाला इमेज ब्लर होता जाएगा. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस विल अफेक्ट अस. ठीक है, तो मेनली our agenda is to not blur the image so that we can get the answers out of it. But हाँ, ये कुछ image processing का एक concept था which I wanted to highlight for you people. So we have seen convolution till now, we have seen ReLU, we have seen max pooling. Now we should come to the CNN classification कि इसमें क्या क्या हो रहा है. ठीक है, now कॉन्वोल्यूशन क्या करता है, मतलब क्लासिफिकेशन अगर मुझे करना है, अभी तक हमने क्या किया पीछे, वी हैव सीन दैट बेसिक कन्वोल्यूशन हुआ, फिर हमने मैक्स पूलिंग भी किया, बीच में हमने रेलू भी किया. बट देन हाउ विल इट गिव मी द फाइनल आउटपुट. ठीक है, तो द the maximum things will be given as the output in the final row only. ठीक है, तो यहाँ पे we have let's say 0 1 2 3 4 5 up to 9, so we have 10 numbers. There is a data set MNIST. I think today in practical I will be implementing on that only. So I have already made the code, I have used the MNIST data set. तो उसमें 0 से लेके 9 तक के हैंड रिटन डिजिट्स हैं, और उसमें we will be doing some prediction that given a image that what is the number in it. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, लेट्स से वी हैव दिस इमेज 2 5 5 6, ये आया है अपने पास मैक्स पूलिंग वो सब होने के बाद. ठीक है, तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एंड में ये बच गया सिर्फ 2 5 5 6, इतनी बड़ी इमेज के बाद आप यहाँ पे पहुंच गए. नाउ यू हैव टू फ्लैटन इट. अब इसमें फ्लैटन नाम का एक यहाँ पे लिखा हुआ है, आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी फ्लैटनिंग दिस 2x2 into 4 नोड्स. तो इसका फ्लैटन का मतलब ये है कि जो भी मेरा मैट्रिक्स है उसको 1D अरे में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, एक बेसिक सा फायदा रहता है इसमें. whenever we have 2 5 5 6 और whatever the size is, तो आप उसको फ्लैटन कर दोगे तो वो नंबर ऑफ नोड्स फ्लैटन आउट हो जाएंगे इन 1D अरे. तो वो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये अपने पास 4 न्यूरॉन है. फॉर एग्जाम्पल दिस सर्कल इज ए न्यूरॉन. तो हम न्यूरॉन्स को यूज करके कर सकते हैं ऐसे. एंड फॉर ईच न्यूरॉन इट विल स्टार्ट प्रिडिक्टिंग के मतलब इसमें क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल इन 4 का कनेक्शन मैं आखिरी में 10 न्यूरॉन्स के साथ बना दूंगा. इसमें CNN में एक रूल है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लासिफिकेशन करनी है 10 क्लासेस की. सो वी विल हैव द 10 नोड्स. इसको मैं नोड्स भी कह सकता हूँ, इसको मैं न्यूरॉन्स भी कह सकता हूँ. सो वी विल हैव दिस टोटल उतना ही होगा एंड में न्यूरॉन आखिरी लेयर में. दिस इज द फाइनल स्टेप. उतना ही होगा जितना मेरे नंबर ऑफ क्लासेज हैं. अगर 10 है तो 10 होंगे, 5 है तो 5 होंगे, 2 है तो 2, 100 है तो 100. ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा. सो इतना समझ में आ रहा है. अब यहाँ पे एक चीज बतानी रहेगी सिर्फ, जो यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हैं 0.02 0.01 0.97. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस नंबर? एनी आइडिया? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स.
व्हाट इज दिस नंबर 0.97 0.01? इसका क्या मतलब है, क्या हो रहा है यहाँ पे? फाइनल आउटपुट क्लियर है ये? एक बेसिक सा आइडिया देखना चाहता हूँ अगर आपको है। एक जना कह रहा है वेट्स, वेट्स तो नहीं है ये। 0.97 0.02, these are not weights. Anyone else? Darkness of lines, wrong. Any other idea? Probability, yes. Probability is the correct answer. अब क्या है, मेरे को पता है कि मेरे को 0 से लेके 9 तक के 10 डिजिट्स को क्लासिफाई करना था एंड वी हैव 10 नोड्स इन दी एंड। तो इसका मतलब मेरे पास 10 क्लासेस हैं, तो मैं हर क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। सो माई मॉडल विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच नोड। अब ये 4 वाले पे 97% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 0.97 इज 97% प्रोबेबिलिटी दैट इट इज 4। तो ये ठीक भी है, ठीक है, क्योंकि हम 4 को ही कर रहे थे क्लासीफाई, तो इसलिए 4 वाले पे 0.97 है। दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट मैक्स। सो व्हेन यू विल लर्न अबाउट सम लिटरेचर ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें जैसे एक्टिवेशन फंक्शन आएगा, एक्टिवेशन फंक्शन में वी हैव सीन रेलू व्हिच इज द मोस्ट फेमस एक्टिवेशन फंक्शन। वी हैव सॉफ्टमैक्स, वी हैव सिग्मॉइड आल्सो। तो इस केस में सॉफ्टमैक्स लगेगा। एक बेसिक सा रूल है, इसको लिख लो। सॉफ्टमैक्स लगता है मोर देन 2 क्लासेस पे, बट अगर सिर्फ 2 क्लासेस हैं, जैसे आप लोगों ने कल सेंटीमेंट एनालिसिस किया था, आई होप दैट इट हैड 2 क्लासेस, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट। इन दैट केस यू वुड यूज सिग्मॉइड एक्टिवेशन लेयर, ठीक है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया होगा। आई होप आई एम राइट। अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो उसमें पक्का सिग्मॉइड ही लगाया होगा। कैन एनीवन कंफर्म टू मी दैट यू हैव इम्प्लीमेंटेड दैट सेंटीमेंट एनालिसिस यस्टरडे? तो उसमें सिग्मॉइड लगाया था आपने। Did you use deep learning model in yesterday's class? RNN का कुछ वर्जन implement किया होगा, or it was something else? Which model did you implement yesterday to do that? Logistic regression? I hope you had done at least logistic regression. Please write in the chat box, confirm it to me. Yes, okay. So you have implemented logistic regression yesterday, and logistic में लॉजिस्टिक रिग्रेशन का नाम ही लॉजिस्टिक एक्टिवेशन फंक्शन से पड़ा है, एंड लॉजिस्टिक एक्टिवेशन फंक्शन का सेकंड नेम है सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। लॉजिस्टिक को सिग्मॉइड भी कहते हैं। तो इसलिए you have already worked with that 2 classes, so I have brought 10 classes today, and in 10 classes को अगर मैंने करना है, अगर चाहे 3 होती, 4 होती, 10 है, 100 है, जितना भी है, 2 से ज्यादा है, तो द रूल सेज दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। अब सॉफ्टमैक्स का कंसेप्ट यही है दैट सॉफ्टमैक्स अगर आप लेयर लगाओगे तो एंड में उसके पास हर नोड का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, जिसका मैक्सिमम होगा वो उसको आउटपुट दे देगा, ठीक है। इस केस में वी हैव 0.97, सो आवर फाइनल आंसर इज 4। सो देयर इज वन मोर कंसेप्ट व्हिच आई वांटेड टू हाईलाइट, ट्रांसफर लर्निंग, एंड बिफोर दैट आई वांट टू डू सम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस टिल हियर, ठीक है। यहाँ तक का एक बेसिक सा मॉडल रन करके देखते हैं, एंड वी विल लुक इनटू ट्रांसफर लर्निंग लेटर ऑन। मैंने अपनी तरफ से एक सिंप्लीफाइड ट्रांसफर लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन किया आप लोगों के लिए, ताकि आप इम्प्लीमेंट करके सीख पाओ, बट आई वांट टू कम टू द कोड सो दैट यू आल्सो कैन हैव सम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। सो लेट्स गो टू आवर hands on practice. I will bring this sheet in front of you. So this is my code. I have implemented 2 codes for you, and we will be implementing both of them today. तो इस केस में मैं पहले वाला कोड खोलने लगा हूं, ठीक है। So this code can be found at this link. This is my GitHub link. So I am sharing this link in the chat box so that everyone can open this link parallelly. If you want to implement, make sure that you are on a laptop, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। Just posted one message in the chat box. इस लिंक को खोल लो, ठीक है। यू विल लैंड ऑन दिस पेज, एंड दिस इज द कोड जिसको हमने इम्प्लीमेंट करके एमनेस्ट डेटा सेट के ऊपर काम करना है। एंड आई विल शो यू एमनेस्ट क्या प्रॉब्लम है, एमनेस्ट में क्या होता है। आई विल शो यू ऑल दैट, एंड देयर इज वन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर यू। तो एक थोड़ा सा आपके लिए फ्री में मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मैं कुछ दे रहा हूँ, ANN, ठीक है। CNN तो था ही जो हम डिस्कस कर रहे थे, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू हाईलाइट ANN। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और CNN में दोनों में क्या फर्क है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। आई हैव इम्प्लीमेंटेड बोथ ऑफ देम टू गेट द एक्यूरेसी ओवर एमनेस्ट, एंड एमनेस्ट में क्या होता है, आई विल शो यू जस्ट अ सेकंड। अगर मैं कैगल खोलूंगा
kaggle.com इज वेरी फेमस वेबसाइट, तो आप यहाँ पे एमनेस्ट डेटासेट सर्च कर लो। सपोज आपने एमनेस्ट किया, ठीक है, एमनेस्ट सर्च करके आपके पास डेटासेट्स, सो वी हैव दिस एमनेस्ट डेटासेट। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा बेसिक उठाना है। एमनेस्ट ओरिजिनल, लेट्स सी अगर यही है, मुझे ये नहीं लग रहा, जस्ट अ सेकेंड। सो देर आर मेनी वेरिएशंस ऑफ इट। फैशन एमनेस्ट है एक, ये भी मैंने आज इंप्लीमेंट किया हुआ है फॉर यू पीपल, इट हैज 10 क्लासेस ओनली। ये ठीक है, एमनेस्ट इन CSV, ये ठीक लग रहा है मेरे को। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास, हाँ यही है। अगर आप इस पेज को देखोगे, so we have few things here. So in the data section we have MNIST train, MNIST test, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये चाहिए दैट हैंड रिटन डिजिट्स होंगे और उसके ऊपर मुझे एक्यूरेसी लेके आनी है। वी हैव टू ट्रेन ए मॉडल यूजिंग द ANN, यूजिंग द CNN, दोनों मॉडल लगाएंगे एंड वी हैव टू क्लासीफाई दैट विच डिजिट दिस इज। ठीक है, तो मैं एक बार ना google.com भी खोल लेता हूँ। सो ओवर google.com आई विल शो यू एमनेस्ट का कुछ इमेजेस। ठीक है, एमनेस्ट हैंड रिटन डेटा सेट कैसा दिखता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें हमारे पास ऐसा कुछ इमेजेस होगा, ठीक है। तो सपोज ऐसा इमेज है, so we have handwritten images. I hope it is very clear now. I have zoomed into it. So इसमें हमारे पास handwritten digits हैं 0 to 9। ठीक है, अब हर किसी की हैंड राइटिंग अलग है। तो ये 1989 में एक प्रॉब्लम आई थी इन US पोस्ट ऑफिस में। वो क्या करते थे, पिन कोड रीड करने के लिए उनको एक मशीन चाहिए थी। सो समवन मेड दिस न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। उसमें एलिकन एक आया था मॉडल 1989 में। सो इसमें दे implemented this kind of architecture to just do some hand written recognition। तो हैंड रिटन जो भी आपका अल्फाबेट्स होगा ABCD, जो जो भी पिन कोड में था, तो उन्होंने ये मॉडल दिया 1989 में दिस। ठीक है, तो इसमें ये 5 इसलिए क्योंकि इसमें 5 लेयर्स हैं, इसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, बट दिस इज द बेसिक आइडिया दैट ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को हम CNN ANN लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू दिस पार्ट, तो मेरे को पता चल गया कि एमनेस्ट में है क्या, एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट फ्यू थिंग्स। तो आप लोगों ने ये लिंक खोल लिया होगा अब तक। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन इन कोलैब। ठीक है, यहाँ पे ये बॉक्स बना होगा, इसको ओपन कर लो। अगर किसी का नहीं ओपन हो रहा तो काइंडली चेक योर कनेक्शन एंड ऑल्सो लॉग इन टू योर जीमेल। ठीक है, अगर आप जीमेल में लॉग इन करोगे इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ब्लैक थीम में करा हुआ है बैकग्राउंड, आपका हो सकता है वाइट हो, बट ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा आपका जब आप उसको ओपन इन कोलैब करोगे। collab.research.google ऐसे वाले पेज वो अपने आप ले जाएगा अगर आप यहाँ पे ओपन इन कोलैब पे क्लिक करोगे। देन so we have now this thing that we are getting the system information। अभी मैं कोड के ऊपर डिस्कशन करूंगा। just to give you basic idea, ये NVIDIA का सिस्टम इंफॉर्मेशन लेने के लिए कमांड है SMI इस सिस्टम इंफॉर्मेशन। यहाँ पे सारी डिटेल आ गई अपने पास, तो इसको आप भी रन करना अपने एंड पे, आपका भी ऐसे कुछ आएगा। GPU का नाम है टेस्ला T4 एंड वी हैव 16 GB GPU, जिसमें से 15,000 समथिंग MB अपने पास अवेलेबल है। So I hope you have reached this page. Please confirm in the chat box that you have landed on this page, collab page, quickly. This is a hands-on activity. Okay, one. Hanji, more hands I want to see. Okay. Okay, so Madhav, you have raised hand. What happened? Write in the chat box. Okay, so coming to this code, good. So everyone has opened in Collab. You have to click on this button, connect. यहाँ पे कनेक्ट लिखा है सबके, कनेक्ट पे क्लिक करो। कुछ एलोकेशन होगा, CPU GPU सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक सिस्टम एलोकेट हो जाएगा आपको। एंड ऑल्सो यू हैव टू डू वन मोर थिंग, रन टाइम पे क्लिक करके ना, यहाँ पे आफ्टर क्लिकिंग ऑन रन टाइम क्लिक ऑन चेंज रन टाइम टाइप। क्लिक ऑन दिस चेंज रन टाइम टाइप एंड विद इन दिस आपका नन होगा बाय डिफॉल्ट, आपको GPU सिलेक्ट करना है।
click on this GPU and save. Runtime, change runtime type, GPU and save. ठीक है, तो सबका GPU ऑन होना चाहिए. ठीक है, एंड देन आपके पास ये सिस्टम भी एलोकेट हो गया होगा वेयर वी हैव सिस्टम रैम GPU, ये मॉनिटर करने के लिए. तो इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ. सो लेट्स बिगिन आवर कोडिंग. ठीक है, so the first command is NVIDIA SMI. I will come back to my page. आप साइड बाय साइड उसको रन करते रहना. ठीक है, I will not run on my end. मेरा ऑलरेडी हो रखा है, मैंने GitHub पे डाला हुआ है, तो I will discuss this only. So NVIDIA SMI means that we are actually wanting to get the information about the system. अब यहाँ पे कोई सोचेगा कि यार यहाँ पे एक्सक्लेमेशन क्यों लगाया. If you are new to Colab, I must tell you, आप नॉर्मल अपने कमांड प्रॉम्प्ट में रन करोगे तो आपको एक्सक्लेमेशन नहीं डालना. बट कोलैब में एक रिक्वायरमेंट है दैट कोई भी अगर आप कमांड रन कर रहे हो, लेट्स से पिप इंस्टॉल, अगर आपने पाइथन थोड़ा बहुत किया हुआ है तो पिप इंस्टॉल, कोई भी पैकेज करने हैं, कुछ भी करना है, कोई भी कमांड रन करनी है, तो आपको उसके आगे एक्सक्लेमेशन लगाना पड़ेगा. इट्स ए रूल ऑन कोलैब. ठीक है, और यही कमांड अगर आप अपने सिस्टम पे रन कर रहे हो, यू विल नॉट नीड टू क्लिक ऑन दिस, यू विल नॉट नीड टू राइट द एक्सक्लेमेशन मार्क. सो आप NVIDIA SMI करके पूरा डिटेल ले सकते हो. एंड हियर इट इज सेइंग दैट वी हैव 15,000 समथिंग MB GPU. So it can be 11,000 something also. डिपेंड करता है आपको कौन सा मिला. मेरे को 16 GB वाला मिला था, हो सकता है आपको 12 GB वाला मिला हो. डजेंट मैटर, डेटा सेट बहुत छोटा है, हैंडल हो जाएगा. So next is that we have to decide that on which platform we have to implement, and I have decided to work on Keras. So someone was asking also earlier that which type of system we should handle, मतलब किस में हम काम करें. So that system is TensorFlow and Keras. So we have to work in this environment. Keras will be very helpful for us. तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक तो यहाँ पे import TensorFlow as TF कर दिया, and I have also looked into the version. तो 2.8 है, लेटेस्ट है. import Keras, तो दो तीन चीजें यहाँ पे की हैं. आई होप इसमें कोई इशू नहीं है. एंड we want to get the data set. So within tf.keras.dataset, अगर मैं इसको गूगल सर्च करूं यहाँ पे, just a second, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ. अगर आप गूगल सर्च करोगे tf.keras.dataset के अंदर, वी हैव मल्टीपल डेटासेट्स अवेलेबल टू अस. बॉस्टन हाउसिंग है, ठीक है, एंड CFAR 10 है, CFAR 100 है, फैशन एमनेस्ट है, IMDb, एमनेस्ट ट्यूटर्स. सो ये एक हमारे टॉय डेटासेट्स हैं. these are all for learning purposes. अगर आप इसके ऊपर कोई रिसर्च करना चाहोगे वो नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा कहीं पे. सो these are only toy datasets just for the learning purpose. तो हम क्या करेंगे, हम आज एक तो एमनेस्ट के ऊपर खेलेंगे और एक हम खेलेंगे फैशन एमनेस्ट के ऊपर. तो ये दोनों को मैंने चूज किया है आज के लिए. एंड दिस CFAR 100 आप अपने एंड पे करना. इसमें 100 क्लासेस हैं, तो हो सकता है इसमें फैशन एमनेस्ट में या एमनेस्ट वाले में आपका 90s में एक्यूरेसी आ रहा है. CFAR 100 बहुत चैलेंजिंग है, इसमें शायद ही 100 तक आपका 90+ एक्यूरेसी जाए. तो मतलब हो सकता है 70-80 पे रुक जाए क्योंकि क्लासेस 100 हैं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टेक्निक्स, बिकॉज दिस इज जस्ट ए बेसिक आइडिया. आपको अच्छा सा एक आइडिया देना है बस. मेन एजेंडा इज टू गिव यू द आइडिया हाउ टू वर्क on this platform. तो आप इसको अपने पे एक्सप्लोर कर सकते हैं. You can work on 1000 classes also later on. So if I want to use the MNIST dataset, I have to just write this command tf.keras.datasets.mnist. इसको मैंने MNIST वेरिएबल में डाल दिया. Now अगर मैं MNIST लिखूंगा तो मेरे पास वो डेटासेट आ गया. ठीक है, now I want to define my training and testing dataset. मतलब क्या होता है, अपने पास जो हमारा MNIST dataset है उसमें टोटल 70,000 इमेजेस हैं, 70,000, जो कि बहुत बड़ा एक डेटा सेट है. अगर देखा जाए नॉर्मल सिस्टम पे चलाने के लिए 70,000 इमेजेस को बहुत ज़्यादा जान लगेगी. सो what we are trying to do here is we are just because this data set is small, 70,000 नंबर बड़ा है बट इसका इमेज का साइज बहुत छोटा है. अगर आप इसकी डिटेल में जाओगे, आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग. यहाँ पे मुझे नहीं लगता इन्होंने लिखा होगा 60,000. ये इन्होंने बाय डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन किया हुआ है. इन्होंने ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दो पार्ट्स बना दिए हैं एमनेस्ट में. बट आई वांटेड टू शो यू समथिंग एल्स, जस्ट अ सेकंड. तो अगर मैं एमनेस्ट सर्च करता हूँ, आई वांट टू गो टू द ऑफिशियल पेज ऑफ एमनेस्ट, या दिस वन. तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 28x28, यस दिस वन. सो अगर आप इसकी डिटेल में जाओगे यू विल सी दैट चाहे इसमें 70,000 इमेजेस हैं. सो दिस डेटा सेट वॉज गिवन बाय दीज 3 पीपल. ठीक है, तो और एमनेस्ट की फुल फॉर्म भी यहाँ कहीं लिखी होगी, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस. ठीक है, एमनेस्ट काफ़ी फेमस है. सो इनिशियली वेरी फेमसली दिस डेटा सेट हैज़ 28x28 इमेजेस. ठीक है,
when you will be attending some other lectures also regarding deep learning and machine learning, especially deep learning, तो उसमें एमनेस इतना ज़्यादा यूज होता है कि वो बिना एमनेस का बताए ना, बाय डिफॉल्ट कुछ बुक्स में एग्जांपल ले लेते हैं 28x28 का। वो रीजन यही है दैट एमनेस्ट एक स्टैंडर्ड डेटा सेट है एंड समटाइम्स व्हाट दे डू इज दे फ्लैटन आउट दीज पिक्सेल्स। तो अगर आप जैसे CSV उठाओगे कैगल से, तो उसके CSV में 784 कॉलम्स होंगे प्लस वन टारगेट का 785 कॉलम्स होंगे। आई विल शो यू दैट ऑल्सो, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे अगर मैं ट्रेनिंग का देखूं, यहाँ पे पता नहीं इन्होंने डायमेंशन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ये रहा 785 कॉलम्स। तो 785 कॉलम्स का मतलब यही है that what they are saying is they have 784 pixels plus one is the label। तो लेबल उनका है, लेबल उनका फर्स्ट कॉलम है कि पहले वाला इमेज है वो 5 है, सेकंड इमेज है 0, थर्ड इमेज इज 4, फोर्थ इमेज इज 1। उसके बाद 784 पिक्सल्स हैं, उसके बाद वो 0000111 जो भी उसका नंबर है पिक्सल का वो होगा। तो 785 इसमें है ट्रेनिंग में, एंड टेस्टिंग में 784 होंगे। अब इसमें 785 ही हैं, बट जनरली बिकॉज व्हेन वी आर ट्रेनिंग वी आर नॉट सपोज टू गिव द टेस्ट डेटा सेट ऑल्सो साथ में। तो टेस्ट डेटा सेट को हम बचा के रखते हैं कि हम अपने मॉडल को टेस्ट कर पाए बाद में। तो उस केस में हम उसमें लेबल वाला कॉलम ड्रॉप करके फिर हम प्रिडिक्शन करवाएंगे, फिर हम इसको ओरिजिनल के साथ मैच करवा लेंगे। आई होप द बेसिक फंडा यू हैव, जिसमें यू नो why do we do these kind of partitioning। तो इसमें partitioning करी जा रही है। So when I run this command mnist.load data, we are actually having these 4 sections in which we are saying training image, training label, test image, test label। मतलब सिंपल है, ट्रेनिंग इमेज का मतलब है 784 पिक्सल्स, ट्रेनिंग लेबल का मतलब है जो फर्स्ट लेबल अभी आपको दिखाया था वो 5 0 1 2 जितना भी नंबर है, तो वो लेबल है। बचे हुए सारे 784 वैल्यूज आर माय पिक्सल्स which have to be training images। सिमिलरली टेस्ट इमेज टेस्ट लेबल का मतलब यही है दैट बिकॉज आई नो दैट टेस्ट फोल्डर में 10,000 इमेजेस हैं, इसमें 60,000 था, इसमें 10,000 है। तो 10,000 का 784 वैल्यूज आर टेस्ट इमेजेस एंड 10,000 मल्टीप्लाई 1 इज माई टेस्ट लेबल, क्योंकि उसका एक ही लेबल होगा। तो उन 10,000 इमेज का एक कॉलम बन जाएगा एक्सेल शीट में, उसमें वो 5014 सब आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट if I want to find that what is the maximum number of images available, एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, बिकॉज यू आर रनिंग दिस पैरेलली, आई होप यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस कोड पैरेलली। तो यहाँ पे एक तो ये वाला बटन है, ठीक है, रन करने का, आप हर बार ये प्ले वाला बटन दबाते रहो, आपका कोड रन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज आप यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट एंटर दबा दो। तो शिफ्ट एंटर दबाओगे तो आपका रन हो जाएगा सेल, और वो ऑटोमेटिकली अगले वाले पे चले जाएगा। ठीक है, मैं शिफ्ट एंटर दबा के आगे आगे जा सकता हूँ। सो आई कैन रन दीज थिंग्स। तो शिफ्ट एंटर दबाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो ये ऑटोमेटिकली आगे आगे जाता रहेगा। नाउ कमिंग बैक टू द कोड, ठीक है, अब यहाँ पे वी हैव द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग में 60,000 इमेजेस हैं, टेस्ट में 10,000 हैं, एंड नाउ वी हैव टू डू सम नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, बिकॉज वी नो कि हर इमेज में नंबर बराबर नहीं होगा और रेंज भी सेम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 0 to 255 पिक्सल, एक ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं इमेज प्रोसेसिंग के। इसको याद रख लो कि हमारा जो पिक्सल होता है, पिक्सल इज 0 to 255, तो 256 टोटल वैल्यूज होते हैं उसमें, ठीक है, रेंज उसकी होती है 256 की, एंड 0 to 255 उसका पिक्सल का नंबर हो सकता है, एंड इट कैन बी पिक्सल 1, इट कैन बी 255, इट कैन बी 250, इट कैन बी 200। तो वो आपस में काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक तो 255 से डिवाइड कर देते हैं उसको, हम पूरे के पूरे ट्रेनिंग इमेज को, पूरे के पूरे टेस्ट इमेज को डिवाइड बाय 255 कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरे सारे पिक्सल 0 से 1 की रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई पिक्सल नेगेटिव तो नंबर होगा नहीं, पिक्सल तो 0 से लेकर 255 की रेंज तक की होंगे। तो डिवाइड बाय 255 कर दोगे तो ऑल द पिक्सल वैल्यूज विल बी श्रिंक्ड बिटवीन 0 to 1, और उससे क्या होगा, मेरे को मॉडल फिटिंग में आसानी हो जाएगी, क्योंकि इन द एंड वी आर ट्रेनिंग आवर मॉडल, वी आर फिटिंग ए कर्व, एंड बिकॉज वी आर फिटिंग दैट कर्व, उसमें अगर बहुत ज्यादा डिविएशन होगा नंबर्स में तो अपने मॉडल की फिटिंग में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं। इसलिए हम फिर क्या करते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं कि यार 0 से 1 में आ जा, 0 से 1 में तेरे को देख लेंगे। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज वी आर डूइंग द रीशेपिंग।
अब रीशेप यहाँ पे करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं इसका ओरिजिनल साइज देखूंगा ट्रेनिंग इमेज का, आई विल शो यू द ओरिजिनल साइज बिफोर रीशेपिंग। यहाँ पे आई होप मैंने ये रन तो कर दिया वैसे तो इसको दोबारा से मैं रन करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। if I run this command again, mnest equal to this, training image this, so okay, length भी देख लेते हैं। Now I want to see the original shape of my training image, training uh, images dot shape। तो मेरा जो ओरिजिनल शेप है इट इज 60,000 28 और उसको मुझे ये कॉमा 1 साथ में लेके आना इसलिए जरूरी है। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि मुझे अपने मॉडल को ये बताना है कि मेरे पास कितने लेयर्स हैं, ये 1 है या 3 है, इससे पता चलेगा कि ये ग्रे स्केल इमेज है कि कलर्ड इमेज है। आई होप इतना सबको पता है कि जो ग्रे स्केल इमेज होती है उसमें सिंगल लेयर होती है, सिंगल फिल्टर होता है। अगर हम 2D इमेज की बात कर रहे हैं, जो RGB कलर्ड इमेज होती है, उसमें हमारे पास RGB 3 चैनल होते हैं एंड ऑल दोस 3 चैनल्स हैव टू बी रिटन हियर। तो यहाँ पे 1 की बजाय 3 हो जाएगा, तो इट विल बी 28 28 3 इन दैट केस। बट इस केस में बिकॉज वी हैव 1, इट मीन्स दैट इट इज ए ग्रे स्केल इमेज। ठीक है जी, ओके। सो मूविंग अहेड, सिमिलरली हमने क्या किया, वी हैव गॉट द रीशेपिंग एंड नॉर्मलाइजेशन फॉर माय ट्रेनिंग एज वेल एज टेस्टिंग। तो ये दोनों करके हम फ्री हो जाएंगे। और जब ये कर दिया हमने, वी कैन नाउ डिफाइन माय ANN मॉडल। ANN एंड CNN में सिर्फ एक ही फर्क है। ANN में वी ओनली हैव द फ्लैटन आउट लेयर्स एंड द फुली कनेक्टेड लेयर्स। इसको हम जो ये डेंस लिखा है ना, डॉट डेंस, ये डॉट डेंस जो लेयर होता है इसको हम फुली कनेक्टेड लेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये देखो, ये डायग्राम में वी हैव दिस फुल कनेक्शन 2 टाइम्स। ये सेकंड लास्ट और लास्ट वाला फुल कनेक्शन लिखा है। तो जब फुल कनेक्शन लिखा हो ना, तो समझ जाओ कि मुझे यहाँ पे डेंस वाला लेयर लगाना है। ठीक है, dense 32, dense 10, both of these are being used in this kind of connection। जब full connection हो रहा है तो उसको dense layer कर दो। dense layer का मतलब सिंपल है that we have multiple neurons, वो सब आपस में connected हैं। full connection है मतलब अगर इधर 5 है उधर 4 हैं, तो वो 5 into 4 20 connections होंगे उसके बीच में। तो full connection का मतलब ये होता है। ठीक है, I will discuss other things। So coming back to this point, सो जो भी हमारे पास होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो भी इनपुट आएगा उसको मैं फ्लैटन आउट कर दूंगा इनिशियली। तो जो भी इनपुट साइज होगा जो कि 28 था, तो उसको फ्लैटन आउट करके 784 बना देगा एंड इट विल गिव मी 784 वैल्यूज। तो उसके बाद मैं अगली लेयर में 32 लगा दूंगा और उससे अगली लेयर में 10 लगा दूंगा। तो ये हो गया मेरा ANN डिफाइन। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज ध्यान में रखना है, when we are defining our model, because this is a sequential model। sequential model का मतलब है that we have layer by layer। तो layer by layer है यहाँ पे। तो बहुत जने क्या करते हैं, मतलब there are multiple methods to do this। तो ये वाले मेथड में तो मैंने क्या किया that this sequential function is starting at this point and ending at this point, और मैंने अंदर ही सारे आर्ग्यूमेंट डाल दिए कि यार ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, कॉमा डाल डाल के कर दिया। सेकंड टेक्निक कैन बी, मैं इसको सीक्वेंशियल को फंक्शन को यहीं पे बंद कर दूं, उसके बाद डॉट ऐड फंक्शन लगा के अगली लेयर में मैं उसको ऐड करता जाऊं। ठीक है, एक तरह का अपेंड करता जाऊं। तो मैं अपेंड करने की बजाय एक ही बार में मैंने उसको बता दिया कि मुझे ये तीनों चाहिए एक साथ। ठीक है, एंड देन कंपाइल करना जरूरी है बिकॉज कंपाइलिंग विल टेक केयर ऑफ द ऑप्टिमाइजर। अब ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे क्यों लगाना है, आई विल गिव यू अ बेसिक रीजन। ठीक है, अब करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा कुछ आर्किटेक्चर है। सो आई विल टेक यू टू द एलेक्सनेट आर्किटेक्चर, क्योंकि मुझे एलेक्सनेट आज डिस्कस भी करना है डिटेल में। सो आई विल शो यू एलेक्सनेट आर्किटेक्चर। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस एलेक्सनेट आर्किटेक्चर। इसमें वो पैडिंग स्ट्राइड सब दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो मतलब इसमें सब डिटेल में चर्चा करेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इनपुट था, इट इज 227 क्रॉस 227 क्रॉस 3। अब यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब है कि ये RGB इमेज इनपुट लेगा जिसका इनपुट साइज इज 227 3। तो इनिशियली अपने पास 28 1 है, तो उसको 227 कैसे बनाना है, वी विल टेक केयर ऑफ इट। अभी के लिए बस समझ लो हम कर क्या रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेप टू दी अदर, और हर बार हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पहली बार यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन कर दिया, अगली बार यहाँ पे मैक्स पूलिंग कर दिया, फिर कॉन्वोल्यूशन कर दिया, फिर मैक्स पूल कर दिया, फिर कॉन्वोल्यूशन कर दिया, कॉन्वोल्यूशन कॉन्वोल्यूशन, फिर मैक्स पूल। ये FCFC इज फुली कनेक्टेड और एंड में सॉफ्ट मैक्स।
तो ये एक बेसिक सा आर्किटेक्चर है. इफ आई लुक इनटू द एमनेस्ट का आर्किटेक्चर, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सिंप्लीफाई वाला ढूंढ लेता हूँ, ये मेरे को ठीक लग रहा है समझाने के लिए. सो फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ आर्किटेक्चर है जो हम आज रन करना चाहते हैं. सो मेरे पास ओरिजिनल इमेज है 28x28, ये वाला जो इमेज है. सो दिस इज माय इनपुट इमेज, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आपने देखा होगा 28x28 का हमने साइज बना लिया है. ठीक है, तो अपना इनपुट तो यही है. तो उसके बाद लेट्स से वी हैव 32x28, तो 32 फिल्टर लगा दो और काम करवा लो. ठीक है, यहाँ पे आपके पास काफ़ी कुछ है, ये डायग्राम को समझते हैं. उससे पहले वी वांट टू लुक इनटू द CNN मॉडल आल्सो. तो एक तो ANN समझ में आ गया. ठीक है, अब पीछे वो डायग्राम में कन्वोल्यूशन था, मैंने सोचा चलो अपना भी CNN दिखा देता हूँ पहले. सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ANN बनाया था, यहाँ पे मैंने CNN बना दिया. मैं इसके बारे में बताता हूँ. कंपाइल वाला इधर भी है, CNN वाले में भी लगेगा, बट आई वांट टू डिस्कस दिस आर्किटेक्चर फर्स्ट. तो आर्किटेक्चर में यहाँ पे मैंने अपना खुद का बनाया है. ठीक है, खुद का आर्किटेक्चर बना रहे हैं हम, जिसमें हम इनिशियली एक कन्वोल्यूशन लेयर ले रहे हैं. कन्वोल्यूशन लेयर का मतलब वही है जो आपको स्लाइड में दिखाया था कि हम 1 by 1 3x3 का फिल्टर चलते जाएंगे उसके ऊपर रख रख के, और साइज कुछ चेंज हो जाएगा. ठीक है, कैन एनीवन टेल मी क्विकली दैट व्हाट विल बी द आउटपुट साइज अगर मेरा इनपुट साइज 28x28 है एंड वी हैव दिस 3x3 का फिल्टर ओवर इट, व्हाट विल बी द आउटपुट साइज एक बार कन्वोल्यूशन करने के बाद. क्विकली आई एम वेटिंग इन द चैट बॉक्स. मुझे बताओ अगर 28x28 मेरा इनिशियल साइज है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ माय आउटपुट इमेज अगर मैं 3x3 का फिल्टर लगा रहा हूँ उसके ऊपर. क्विकली राइट इन चैट बॉक्स. आई एम वेटिंग. एनीवन, एनीवन कैन आंसर. देयर आर 77 स्टूडेंट्स. आंसर एक जना कह रहा है 9x9. ओके, एनीवन एल्स? गलत है 9x9. देखो एक सिंपल सी बात है, अपने पास मैंने आपको एक पीछे स्लाइड में दिखाया था 7x7 का था इनिशियली, एंड उसके ऊपर मैंने 3x3 का लगाया था, तो मेरा फाइनल आंसर आया था 5x5. उससे एक हल्का सा आइडिया ये हो रहा है कि जो भी मेरा इनपुट होगा n, उसको ले लेते हैं. लेट्स से माय इनपुट साइज इज n. n का मतलब n×n, वो अपने आप कर लो, लेकिन n मेरा स्टार्टिंग साइज है. लेट्स से 7 इज माय स्टार्टिंग साइज, और फिल्टर है f. ठीक है, माय n इज द स्टार्टिंग साइज. ठीक है, फॉर एग्जांपल n मेरा 7 था और उसके बाद मेरा फिल्टर था उसके ऊपर 3. तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया था? माय फाइनल आंसर वाज n-f+1. ठीक है, तो विच वाज इक्वल टू 5x5. तो मैंने एक चैट बॉक्स में लिखा जस्ट अभी, ये n-f+1 इज ए वेरी फेमस फार्मूला. या तो फार्मूला याद कर लो या फिर इसको थोड़ा सा समझ के कर लो, जैसा भी आप करोगे, डू इट फॉर योरसेल्फ. ठीक है, तो अगर मेरा इनिशियल साइज 7x7 था और फिल्टर मेरा 3x3 था, तो मेरा फाइनल साइज वाज 5x5 n-f+1. सिमिलरली अगर मेरा स्टार्टिंग साइज अब 28x28 है, फिल्टर मेरा 3 है, ठीक है, तो साइज विल बी 26. n-f+1 करो, 28-3 + 1, तो 26 आ जाएगा. तो द फाइनल आंसर विल बी 26x26. यहाँ पे देखो 26 26 16 है. अब ये 16 क्यों आया? 16 इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे 16 फिल्टर लिए थे. These are the 16 filters here, जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है. ठीक है, my message is not visible, just a second. To everyone कर देता हूँ अब, चैट में everyone नहीं हो रखा था. Now you will receive my message. तो इसका मतलब आपको मेरे पहले वाला लिंक भी नहीं मिला, तो इसका भी मैं एक बार लिंक दोबारा डाल देता हूँ चैट बॉक्स में. Just a second. ओके, सो n-f+1 के रूल के हिसाब से वी हैव 28-28-1. अब इसको अगर आप 3x3 फिल्टर के साथ करोगे, इट विल बी 26-26, कॉमा 16 होगा क्योंकि हमारे पास 16 फिल्टर थे वैसे. उसके बाद जब हमने किया मैक्स पूलिंग, कैन एनीवन टेल मी 26-26-16 के बाद, जब हमने अभी देखा कि 26-26-16 हो गया, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस मैक्स पूलिंग 2x2? क्विकली, बहुत आसान है.
पीछे हमने देखा था कि जब मैं मैक्स पूलिंग लगा रहा था उस टाइम पे आई हैड माई साइज हाफ, 4x4 वाले का 2x2 बन रहा था। इन मैक्स पूलिंग हम हर बार उसके ऊपर फिल्टर चला रहे हैं और 2x2 की बजाय सिर्फ एक वैल्यू आउटपुट में आ रही है। तो 26x26 वाला हो जाएगा 13x13। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 13x13x16 है। तो नंबर ऑफ फिल्टर्स नहीं हिले बट साइज आधा हो गया मैक्स पूलिंग से। ठीक है, तो ये एक फंडा सा थोड़ा सा समझ में आना जरूरी है, ये पूरा एक फ्लो समझ में आ जाएगा। यू कैन राइट योर ओन CNN मॉडल इसके बाद। ठीक है, सिमिलरली अब एक बार 13x13x16 आ गया, दोबारा से 3x3 लगाऊंगा तो इट विल बी 11 11 16। तो यहाँ पे 11 11 16 आ गया। दोबारा कन्वोल्यूशन लगाऊंगा तो 11 के ऊपर 2x2 लगाओ। ठीक है, तो इट विल बी 5x5। आखिरी वाला स्किप हो जाएगा क्योंकि वो कवर नहीं होगा, 2 × 5 = 10, तो 11th वाला स्किप हो जाएगा, तो 5 5 16 आ जाएगा। नाउ यू कैन फ्लैटन इट आउट। फ्लैटन का मतलब है जो 5 5 16 आया, अगर आप इसको फ्लैटन आउट करोगे तो इसको 1D array में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 5 × 5 × 16 कितना हुआ, 25 × 16 is 400। तो 400 आ जाएगा यहाँ पे। फ्लैटन आउट करके यू विल गेट 400 फ्लैटन आउट नोड्स इन दैट लेयर। ठीक है, उसके बाद यू हैव दिस डेंस लेयर। डेंस लेयर में क्या कर रहे हैं हम, वी हैव फुली कनेक्टेड। डेंस का मतलब फुली कनेक्टेड होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इधर, जस्ट अ सेकेंड। जब मेरा डेंस आया तो दिस इज माई फुली कनेक्टेड। ठीक है, तो फुली कनेक्टेड लेयर होगा, इसको मैं FC कह देता हूँ, FC इज माई फुली कनेक्टेड। उसके बाद हमने लगाया सॉफ्ट मैक्स। तो सॉफ्ट मैक्स क्या करता है, इट हेल्प्स अस इन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। क्योंकि मैंने अभी पीछे स्लाइड में दिखाया था सॉफ्ट मैक्स क्या कर रहा था, वो जो 0.01 0.02 0.97 वो प्रोबेबिलिटीज आ रहे थे वो 10 वैल्यूज में से, तो वो मेरा सॉफ्ट मैक्स काम करके दे रहा है एंड इट इज हेल्पिंग अस टू जज कि भाई मेरे को फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है। वो बैक एंड पे अपने आप मैक्सिमम वैल्यू बता देगा उसमें से 10 में से। तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है कि 400 के बाद मैंने 32 नोड लगाए और 32 नोड के बाद मैंने 10 नोड लगाए, तो टोटल मेरे पास ऐसा कुछ आर्किटेक्चर बना आ गया। और उसमें कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं यहाँ पे 160 2320 12,000 समथिंग 330। तो इसका आप अपने एंड पे थोड़ा सा ढूंढना, बिकॉज अदरवाइज दिस क्लास विल बी लॉन्ग अगर मैं इसका कैलकुलेशन आपको समझाने लग गया। एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। इसमें करना क्या है, इसमें वेट्स एंड बायस का ना एक कंसेप्ट होता है। एंड वेट्स एंड बायस के हिसाब से व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स। दिस इज माय वेट्स 400 × 32 प्लस बायस। बायस क्या होगा, मेरा करंट नोड जो होगा, करंट वाला जो लेयर होगा, करंट लेयर के जितने नोड्स हैं उन सबको ऐड कर दो। मतलब 32 अगर नोड्स हैं तो सबका अपना अपना बायस वैल्यू होगा, 32 बायस वैल्यूज होंगे। सो 400 into 32 will be 12,800 plus 32 will be 12,832। Similarly 32 into 10 is 320 प्लस 10 बायस का, तो वेट्स मल्टीप्लाई करके प्लस 10 बायस का वैल्यू कर दोगे तो 330। एक बेसिक सा आइडिया दे दिया, बाकी आप थोड़ा अपने एंड पे भी ढूंढो कि ऊपर के कैसे आए ये नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ ए CNN, दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ ए ANN। ANN में हमारे पास कन्वोल्यूशन के अलावा बाकी सब है, फ्लैटन से शुरू करके एंड तक, और इसमें सिर्फ कन्वोल्यूशन मैक्स पूलिंग ये सब ऐड हो गया, बाकी अपना नीचे का सेम है। सो नाउ आई वांट टू डिस्कस दिस ऑप्टिमाइजर वाला पार्ट। So optimizer says that we have this Adam optimizer, sparse, categorical cross entropy and accuracy। तो ये यहाँ पे तीन चीजें डिस्कस हो रखी हैं, ऑप्टिमाइजर, लॉस एंड मैट्रिक्स। अब क्या होता है दैट व्हेन वी आर ट्रेनिंग ए मॉडल, हम अपने मॉडल को इम्प्रूव कर रहे हैं ओवर टाइम, बिकॉज वी आर डूइंग इट ओवर नंबर ऑफ इपॉक्स। इपॉक्स होते हैं, इपॉक्स को आप आइट्रेशन भी कह सकते हो। जैसे फॉर लूप चला रहे हो आपने बहुत बार सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 10 नंबर्स इन एन एरे ऐसा कुछ बनाया होगा, तो फॉर लूप लगाया होगा। C++ में दोनों में होता है वो। तो वही फॉर लूप को हम यहाँ पे इपॉक्स कह रहे हैं। इपॉक्स का मतलब है दैट ओवर माय 60,000 इमेजेस और द 10,000 इमेजेस आई एम गोइंग थ्रू अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स। अब वो नंबर ऑफ इपॉक्स के साथ साथ हर बार क्या करता है, अपना एंड में एक्यूरेसी चेक कर रहा है। अब यहाँ पे अभी आप ट्रेनिंग मॉडल देखोगे जब, तो यहाँ पे जब ट्रेनिंग मॉडल होगा, ये एक लॉस वैल्यू आएगा यहाँ पे और एक एक्यूरेसी वैल्यू आएगा। लॉस वैल्यू का मतलब है कि मेरा एक्यूरेसी तो आया सो आया, मतलब इतना एक्यूरेट है, बट लॉस कितना हुआ। लॉस का मतलब है कि आप एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर हो। ठीक है, तो हर बार जैसे इपॉक 1, इपॉक 2, इपॉक 3 आउट ऑफ 5, इपॉक 4 आउट ऑफ 5, तो मैंने यहाँ पे 5 इपॉक के लिए चलाया था, यहाँ पे कोड में लिखा हुआ इपॉक 5, तो 5 इपॉक के लिए चलाऊंगा। एंड ओवर द टाइम यू विल सी दैट द लॉस इज डिक्रीजिंग, हर बार लॉस कम हो रहा है। मतलब लॉस 5 बार
मतलब 5 इपॉक में पांचों बार कम हुआ है, पहले ज्यादा लॉस हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। इससे पता चल रहा है एटलीस्ट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, माय मॉडल इज ट्रेनिंग वेल। ठीक है, सो इन दिस केस वी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस इज द कंसेप्ट कि हमारा लॉस गिरना चाहिए। अगर आप ट्रेन कर रहे हो मॉडल, आपका ओवर टाइम जैसे इपॉक्स 1 to 5 तक आप गए और आपका लॉस कम नहीं हो रहा, ठीक है, बल्कि आपका लॉस रुक गया है एक जगह पे, वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, मतलब गिर नहीं रहा लॉस, तो वहां पे दिक्कत है। देन यू नीड टू चेंज फ्यू थिंग्स। उसमें फिर आप अपना ऑप्टिमाइजर चेंज करके देख लो, आप कुछ और चेंज करके देख लो। उसके ऑप्टिमाइजर के भी अंदर कुछ वैल्यूज होते हैं, ठीक है, उसको हम ट्यूनिंग पैरामीटर्स ऑफ एन ऑप्टिमाइजर बोलते हैं। तो आप उनकी वैल्यूज चेंज करके देख लो, शायद आपका ऑप्टिमाइजर और ज्यादा अच्छा काम करेगा। सो एक तो लॉस गिरना जरूरी है एंड ओवर टाइम एक्यूरेसी बढ़ना जरूरी है। यहाँ पे 79, 89, 90, 91, 91.8, तो हर बार मेरा एक्यूरेसी बढ़ रहा है, तो मतलब वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, इतना तो पक्का क्लियर है। सो एक तो ये हो गया। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऑप्टिमाइजर का काम है ये इम्प्रूवमेंट देना, ऑप्टिमाइज कर रहा है, नाम में पता चल रहा है कि कुछ ऑप्टिमाइज हो रही है चीज। ठीक है, अब एडम क्या है? एडम का फुल फॉर्म है एडेप्टिव मोमेंट। एडेप्टिव मोमेंट, एडम कैसे बना? एडम इज ए मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिमाइजर्स। एक तो है एसजीडी विद मोमेंटम, स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट विद मोमेंटम, प्लस आरएमएस प्रॉप, रूट मीन स्क्वायर प्रोपगेशन। तो ये दो ऑप्टिमाइजर होते थे पहले। ठीक है, यहाँ पे इनफैक्ट यू विल सी, यहाँ पे मैंने एसजीडी दोबारा लगाया है, तो ये कंपाइल वाली लाइन मैंने बल्कि डुप्लीकेट कर दी, ये वाली मुझे यहाँ पे नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे जब मैं ANN लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये दोबारा दे रहा हूँ कि कंपाइल मुझे इससे करना है, तो ये कंपाइल वाली लाइन अपडेट हो जाएगी। एडम की बजाय हम एसजीडी के थ्रू रन कर रहे हैं, स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट के थ्रू रन करेंगे। एंड लॉस इक्वल टू स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। अब ये मैंने स्पार्स कैटेगोरिकल क्यों किया? अब सिंपल है यार, यहाँ पे ना एक एक चीज थी। अगर आप यहाँ पे ऊपर साइज देखोगे, मैंने यहाँ पे साइज दिखाया था आपको ट्रेनिंग का, जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको यहाँ पे ट्रेनिंग का साइज दिखाया था 60,000 कॉमा 28,28। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक बार अब टेस्ट वाले का भी साइज दिखाता हूँ। लेट्स से टेस्ट इमेज, वैसे तो इसका भी वो 10,000 वाला वो तो चलो कंफर्म ही हो जाएगा, मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था, वहां पे भी लेके आता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ पे साइज आ गया ये। ठीक है, ये हो गया इमेजेस का। अब हम बात करते हैं मेरे लेबल्स की। ठीक है, अभी तक हम इमेज की बात कर रहे थे, अब लेबल्स का साइज देखते हैं, ट्रेनिंग लेबल्स का साइज देखते हैं जी, जस्ट अ सेकेंड। ट्रेनिंग लेबल्स डॉट शेप, तो ट्रेनिंग लेबल का शेप आ रहा है, कॉमा 1 नहीं आ रहा, यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, अब क्या है कि मेरे मॉडल को पता तो होना कि उसका साइज क्या है, मतलब जो मैंने ट्रेन करना अपने मॉडल को। तो देखते हैं यहाँ पे आगे किया होगा कुछ ना कुछ इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव दीज थिंग्स। अगर चलो नहीं भी किया उस केस में, यहाँ पे पता है क्या हुआ है? जो ये स्पार्स कैटेगोरिकल है, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट नंबर। अब बैकएंड पे क्या है, अगर आप उसको शो करके देखोगे, अगर मैं इसको प्रिंट करवा दूं, लेट्स से एक यहाँ पे ना डॉट हेड नाम की कमांड होती है, डॉट हेड फंक्शन, बाय डिफॉल्ट ये टॉप 10 उठा के दे देता है वैल्यूज के, टॉप 10 वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, अब इसमें ये numpy एरे है, ये डाटा फ्रेम नहीं है, तो मैं इसको या तो डाटा फ्रेम बनाऊं, पर मैं यहाँ पे वो पंगा लेना नहीं चाह रहा, तो मैं अभी के लिए इसको छोड़ देता हूँ। डेटा फ्रेम्स में होता है कि हम उसका डॉट हेड करके टॉप 10 वैल्यूज ले सकते हैं। सो लेट्स कम बैक टू दिस। तो यहाँ पे स्पार्स कैटेगोरिकल का मतलब है बिकॉज वी हैव द नंबर 1 to 10, तो 1 to 10 वाली चीज को वो कैटेगरीज कह रहे हैं, कैटेगरीज भी स्पार्स क्योंकि वो नंबर्स हैं। इसमें एक वन हॉट एनकोडिंग वेक्टर का भी वर्जन होता है। वन हॉट एनकोडिंग वेक्टर क्या होती है? इट जस्ट मीन्स दैट लेट्स से मेरे पास 3 नंबर हैं 1 2 3, तो आप 1 को लिख दो 0 0 1, ठीक है, 2 को लिख दो 0 1 0, 3 को लिख दो 1 0 0। तो आप एक टाइम पे एक ही बिट को 1 कर रहे हो, बाकी सबको 0 रख रहे हो, तो वो वन हॉट एनकोडिंग वेक्टर होता है। उस केस में अगर मेरे पास 10 क्लासेज होंगी तो मेरे पास 10 लेंथ का एक वेक्टर बन जाएगा। तो अगर वो होता तो मैं स्पार्स ना लगाता, सिर्फ कैटेगोरिकल रखता। अब यहाँ पे स्पार्स रखा है, इसका मतलब 1 से लेके 10 तक अपने पास नंबर्स हैं। नाउ आई एम गोइंग टू फिट द मॉडल। फिट करने के लिए मेरे पास एक यहाँ पे कवर करना रह गया था, माई कॉल बैक नाम का एक फंक्शन मैंने बनाया है। इसका मतलब ये है, दिस इज फॉर अर्ली स्टॉपिंग। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिफाइनिंग द कॉल बैक फंक्शन टू स्टॉप आवर ट्रेनिंग वंस द एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी रीच्ड। यहाँ पे एक चीज लिखी है logs.get accuracy 95।
इसका मतलब ये है कि जब आप मॉडल अपना ट्रेन कर रहे हो, अब ये भी नहीं करना दैट हम ट्रेनिंग के टाइम पे 100% पहुंच जाएं और पता चला पीछे मेरा टेस्टिंग वाला पार्ट फेल हो गया मतलब वहां पे 60% 70% आ रही है एक्यूरेसी, एंड वी आर हैविंग द एक्यूरेसी ऑफ ट्रेनिंग 99% 100%, तो वो गैप बहुत बड़ा हो जाएगा। इस केस को हम बोलते हैं ओवरफिटिंग। सो आई होप you have heard about that thing. Someone had written, please repeat again for something. Can you tell me that at which point you wanted me to repeat? कौन सा पार्ट नहीं समझ आया था? जीवनजोत, you wrote, please repeat again, sir. क्या रिपीट करना था? मैं देख लेता हूँ दोबारा मैसेज थोड़ी देर बाद। आई विल रिपीट दैट पर्टिकुलर पार्ट। अब यहाँ पे वी आर हैविंग एक्यूरेसी 95%, मैंने अपनी तरफ से लिखा है। आप इसको 95 को 98 कर सकते हो, 99 कर सकते हो, 80 कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। मेरा मतलब ये है कि जब मैं इतना पहुंच जाऊं, मैं वहां पे रुकना चाहता हूँ, तो ये एक छोटा सा मेथड है, वी कैन राइट दिस कोड, ठीक है। एंड देन कॉल बैक्स कर दिया। अब कॉल बैक्स इक्वल टू माई कॉल बैक। अब देखा जाए तो दिस इज ए कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्लास लगाई है, उसका एक कंस्ट्रक्टर सा बना दिया है, मतलब लेकिन मैं यहाँ पे इसको फंक्शन लेके चलूंगा जस्ट फॉर द ईज, ठीक है। तो समझने के लिए आसान हो जाएगा कि अपने पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन को कॉल कर लो। जब जब मैं ट्रेन करूंगा, हर इपॉक पे वो चेक करेगा। अब यहाँ पे 5 इपॉक हैं, पांचों बार वो कॉल बैक करके बैकएंड पे चेक करेगा कि क्या मैंने 95 हिट किया, अगर किया तो रुक जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे 95 हिट नहीं हुआ, हर बार वो 95 से कम ही था, 79 से लेके 91 तक। सो मैंने ट्रेनिंग इमेज ट्रेनिंग लेबल भेजा, बैच साइज 50। अब कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज माय बैच साइज? बैच साइज 50 का क्या मतलब है यहाँ पे, क्विकली एनीवन? बैच साइज का मतलब क्या है यहाँ पे? और ये 1200 क्या लिखा है यहाँ पे? ये 50 है, ये 1200 है, इन दोनों में क्या कोई लिंक है आपस में? फास्ट, एनीवन इन द चैट? हाँ जी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने बोला था दैट हमारे पास 60,000 इमेजेस थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे 60,000 है। तो अब इकट्ठे तो हम नहीं दे देंगे मॉडल को ना कि भाई ये ले 60,000 ले पकड़, इसको अपने आप समझता रहा बैठा। तो हम उसको ना 50-50 इमेज करके भेजेंगे। 60,000 इमेज पूरे करने हैं, तो 50-50 का बंडल भेज रहे हैं। सो दैट इज माई बैच साइज, ठीक है। और ये क्या है 1200, दिस इज नंबर ऑफ बैचेस। तो अगर 50-50 का एक बैच है तो 1200 बैच भेजने पड़ेंगे, तब 60,000 पूरा होगा। तो सिंगल इपॉक में 1200 तक जा रहे हैं हम। तो इसका मतलब 1200 बार हमने 50-50 के बैच भेजे हैं, मल्टी बैच भेजे हैं यहाँ पे फॉर माई ट्रेनिंग पर्पस, ठीक है। नाउ इतना समझ में आ गया कि हो क्या रहा है यहाँ पे फिटिंग करके। और लॉस यहाँ पे फिर मैं कैलकुलेट करूंगा कि मेरा लॉस कितना आ रहा है, हम इवेल्युएट करके देख लेंगे। तो दैट विल बी ये वाला पार्ट, टेस्ट वाला पार्ट चेक करना था एक्चुअल में, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल थिंग जो हमने करना था। एक तो हमने कंपाइल कर लिया। जब हम फिट करेंगे, सिर्फ फिट करके रन करोगे तो आपका इपॉक 1 to 5 ये इतना पार्ट रन हो जाएगा, ठीक है। वंस दीज 5 थिंग्स आर रन, तो अब फिर आप अपने मॉडल को इवेल्युएट कर सकते हो यूजिंग द टेस्ट इमेजेस एंड टेस्ट लेबल्स। और आप उसको प्रिंट भी करवा लो यहाँ पे, जब वो होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और टेस्ट लॉस में आपका वैल्यू भी आ जाएगा बैक एंड पे, ठीक है, वो सेव हो जाएगा। सो नाउ यू हैव टू कंपाइल ट्रेन एंड टेस्ट द CNN। तो अभी तक हमने ANN को रन किया था, अब सेम चीज हम CNN के लिए करेंगे। वैसे सब कुछ है, ऑप्टिमाइजर SGD है, स्पार्स कैटेगोरिकल है, एक्यूरेसी है, सब कुछ सेम है, ठीक है। बस मैंने ANN को CNN कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे। डिपेंडिंग ऑन दैट इसने 3 बार में 95 क्रॉस कर दिया। CNN इज स्ट्रॉन्गर कंटेंडर देन द ANN। ANN ने 5 बार में 91 एक्यूरेसी हिट किया था, पर CNN ने पहली बार में ही मतलब थर्ड इपॉक पे 95 हिट कर दिया, ठीक है। सो दीज 95% एक्यूरेसी वाइल ट्रेनिंग, सो वी आर कैंसलिंग। तो ये इसने यहाँ से उठा लिया, ये लाइन मेरी एज इट इज प्रिंट हो गई है। कमिंग बैक टू दिस, फिर उसको टेस्ट भी कर लो। टेस्ट करोगे तो आपका इतना आ रहा है, मतलब एक्यूरेसी आपका आ रहा है 95%, टेस्ट एक्यूरेसी। ट्रेनिंग एक्यूरेसी आ रही थी 95.14। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, आसपास ही है, और लॉस भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 0.12 0.16। तो दिस इज ए गुड मॉडल, ठीक है। तो इस मॉडल से इस इतने से कोड से हमने क्या करा है, हमने अपना मॉडल ट्रेन करा है टू जस्ट प्रिडिक्ट कि मेरा नंबर 0 है, 1 है, 2 है, अप टू 9।
क्या नंबर है वो प्रेडिक्ट करने के लिए वी हैव डन द जॉब. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट द एएनएन एंड सीएनएन. तो ये पूरा आप अपने एंड पे रन करके देख लेना, आपका भी ऐसे ही कुछ आएगा. ठीक है. एंड यू कैन मेक सम चेंजेस अपने एंड पे. आप इसको बैच साइज को कम ज्यादा कर सकते हो, इपॉक्स को कम ज्यादा कर सकते हो. इपॉक मतलब कितनी बार जाना है, बैच साइज मतलब एक बार में कितने भेजने हैं. ठीक है. एंड फिर आप उसको, यहाँ पे मैंने प्लॉट नहीं करा हुआ बट हम यहाँ पे प्लॉट भी कर सकते थे. तो मैं प्लॉट वाला पार्ट आपको अगले कोड में दिखाता हूँ, बट आई विल ब्रिंग यू बैक टू द स्लाइड नाउ. मुझे ट्रांसफर लर्निंग डिस्कस करना है. ट्रांसफर लर्निंग, transfer learning is one of the very strong and very famous thing these days, uh, technique wise, because right now what we were doing is we have just implemented the ANN, we have just implemented the CNN. तो उसमें क्या कर रहे थे हम, एक एक लेयर खुद डिफाइन कर रहे थे, और उससे क्या होता है कि आपको स्क्रैच से ट्रेन करना पड़ता है. ठीक है. तो बहुत बार क्या होता है, आपके पास हो सकता है बनी बनाई चीज पहले से किसी ने करी हुई थी, तो आप उसकी नॉलेज ले लो. यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो सेकंड फोटो है नीचे वाली, तो आप ऊपर पहले क्या कर रहे थे, एक डेटा सेट को पूरा ट्रेन करके आपका एमएल मॉडल वन रन हुआ, दूसरी बार में दूसरा हुआ. बट ट्रांसफर लर्निंग क्या कह रही है, ट्रांसफर लर्निंग कह रही है कि आप जो मॉडल आपने पहले ट्रेन किया उसकी नॉलेज यूज करके आप सेकंड मॉडल की आउटपुट लेके आ सकते हो. ठीक है. तो एक बेसिक सा आइडिया मैं समझा देता हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या हो रहा है. पहले क्या हो रहा था कि आपके पास पूरा नेटवर्क था, शुरू से लेकर एंड तक आप अपना खुद का काम कर रहे थे. यहाँ पे कहीं पे एक फोटो थी इससे मिलती जुलती, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला. ठीक है. तो एक था स्टार्टिंग में फीचर इंजीनियरिंग, एक था क्लासिफिकेशन. तो ये था कि आप पूरे का पूरा नेटवर्क अपना खुद रन कर रहे हो शुरू से लेके एंड तक. अब आज मैं करूंगा तो वही, जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि ट्रांसफर लर्निंग अगर आप करोगे तो आप क्या कर सकते हो. आप किसी पुराने मॉडल को उठाओ, उसका एंड वाला हिस्सा चेंज कर दो. मतलब एंड में कम ज्यादा फुली कनेक्टेड लेयर लगा दो. मतलब उसका जो डेंस का नंबर ऑफ न्यूरॉन है उसका अपने एंड पे हिसाब से लगा लो अपने हिसाब से. लेट्स से दैट देयर इज वन वेरी फेमस डेटा सेट कॉल्ड इमेजनेट. तो एक इमेजनेट चैलेंज था. इट केम इन 2010. इट वाज लॉन्च्ड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है. फीफी ली नाम की एक सीनियर प्रोफेसर है वहाँ पे, तो उन्होंने ये करवाया था. तो उन्होंने क्या किया, दे गेव 1000 ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक 10 क्लासेस ले रहे हैं. तो उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे एक चैंपियनशिप दिया जिसमें देयर वर 1000 क्लासेस. ठीक है. तो आई विल ब्रिंग यू बैक टू द वेब ब्राउजर. आई विल सर्च हियर इमेजनेट. ठीक है. अगर मैं इमेजनेट सर्च करता हूँ, सो इमेजनेट में वी हैव दिस, ये चैलेंज अभी लेटेस्ट इन्होंने अपडेट कर दिया है. बट इसका जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल स्टार्टेड इन 2010. जस्ट अ सेकेंड, खुल रहा है. अब तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपडेट कर दिया इसमें. अब तो टेक्स्ट के लिए भी आ गया. बट इनिशियली जो आया था, अगर वो आप ढूंढ लोगे, मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा. लोकलाइजेशन अपडेटेड कैगल चैलेंज, जस्ट अ सेकेंड. दिस इज द कैगल पेज. ये ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन पे ले आया मेरे को. बट इसका जो ओरिजिनल था उसमें क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर 1000. अब तो इन्होंने शायद मिलियंस में कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ज़्यादा बड़ा कर दिया डेटा सेट को. बट कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, तो वो क्या कर रहे थे कि इनिशियली उन्होंने 1000 ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रेन कर दिया मॉडल, एंड उसी से देयर वाज वन रिसर्चर इन 2012, जब जैसे 2010 में लॉन्च हुआ तो 2010 में बेस्ट एक्यूरेसी केम अराउंड 70%. जब 2011 में सेम चैलेंज लॉन्च हुआ, समवन गॉट एक्यूरेसी ऑफ 74%, जिसमें देयर वर 1000 क्लासेस एंड 74% वाज कंसीडर्ड गुड. वर्ल्ड लेवल चैंपियन बना वो बंदा. एंड देन द थर्ड पर्सन वाज एलेक्स, एलेक्स क्रिवेस्की नाम का. देयर वाज ए पीएचडी रिसर्चर इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो अंडर द सुपरविजन ऑफ जॉफ्री हिंटन. ही इज कॉल्ड द गॉडफादर ऑफ एआई. तो ही वाज डूइंग हिज पीएचडी इन 2012. तो उन भाई साहब ने क्या किया, ही मेड हिज ओन मॉडल. जैसे अभी मैंने पीछे मॉडल बनाया, आपको दिखाया एएनएन कैसे बनता है, सीएनएन कैसे बनता है. उस बंदे ने अपना मॉडल बना लिया और उस मॉडल को रन किया, एंड ही गॉट द बेस्ट एक्यूरेसी ऑफ 85%. मतलब गैप देख रहे हो. इन 2010 द एक्यूरेसी वाज 70%. In 2011, the accuracy was 74%, and in 2012, the accuracy was 85%. 11% का jump था. It was nearly 15% growth compared to 74%. ठीक है. तो 11% jump was a very big one, and from there on, deep learning का started. Deep learning started,
एंड एवरीवन स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज काइंड ऑफ मॉडल्स, CNNs थोड़े से फेमस हो गए और सबने अपने अपने बनाए। मतलब 2012 में एलेक्स ने दिया, 2013 में VGG आया, विजुअल ज्योमेट्रिक ग्रुप बाय ऑक्सफोर्ड, 2014 में माइक्रोसॉफ्ट वाले आए। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग वो माइक्रोसॉफ्ट ने रेसनेट दिया। तो बहुत सारे मॉडल्स थे जो प्री ट्रेन मॉडल्स अपने पास आज की डेट में पड़े हैं। सो वी हैव गूगल नेट, वी हैव रेसनेट, वी हैव एलेक्स नेट, वी हैव मोबाइल नेट, और भी बहुत सारे हैं। डेंस नेट भी है, एक डार्क नेट है, डार्क नेट इज फॉर योलो। अगर आप थोड़ा बहुत सर्च करोगे योलो, यू ओनली लुक वंस, इट इज वेरी फेमस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टेक्निक। वो बैकएंड पे डार्क नेट यूज कर रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट मॉडल्स। ठीक है, so there is one form in this chat box, uh, but it is not for everyone. Okay, so coming back to the slide, so we have this thing, प्री ट्रेन नेटवर्क एंड फीचर इंजीनियरिंग, और आप एंड में उसका अपडेट कर दो कि आप 1000 की बजाय सिर्फ 3 ही क्लासेस को प्रिंट करवाना चाहते हो, या 2 करवाना चाहते हो, या 10 करवाना चाहते हो, 1000 नहीं करवाना चाहते। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस लिंक, मैं आपको ये स्लाइड भेज दूंगा बाद में। सो यू कैन ओपन दिस लिंक ऑन योर एंड, huggingface.co, ये वेबसाइट पे जाके यू विल फाइंड दीज थिंग्स। ठीक है, so now we have to also look at this photograph. अब ये ऊपर मैक्स पूलिंग थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बट फोकस ऑन द इमेज। यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ ये कह रहा है कि एलेक्स नेट ये रहा, बॉटम पे लेफ्ट कॉर्नर पे है एलेक्स नेट। ठीक है, इन दिस वी हैव अराउंड 55 मिलियन पैरामीटर्स। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत कुछ है। जस्ट अ सेकेंड, सो वी हैव ओनली 5 मिलियन, 4-5 मिलियन यहाँ पे था, 55 नहीं है, 55 इज माय टॉप 1 एक्यूरेसी। तो ये एलेक्स नेट में इस रिसर्च पेपर में डिस्कशन हुआ होगा इन 1605, जो ये बॉटम पे नंबर लिखा हुआ है, इट मींस दैट दिस archive.org हैज अ रिसर्च पेपर व्हिच वाज पब्लिश्ड इन मई 2016। ठीक है, तो आप इस रिसर्च पेपर पे जाके ये फोटोग्राफ ढूंढ सकते हो। तो इसमें बहुत सारे प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हैं। तो आप यहाँ पे देखो, डेंसनेट का है, ठीक है, रेसनेट वाला भी है, मोबाइल नेट है, गूगल नेट है, शफल नेट है, स्क्वीज नेट, रेसनेट 152, VGG 16। तो आई ऑल्सो वांट टू हाईलाइट वन मोर थिंग, यहाँ पे जैसे ये 50 है, 121, 152, all these numbers corresponding to the model, this means that these are the number of layers in it. तो किसी में 152 लेयर्स हैं, जस्ट इमेजिन द डेप्थ ऑफ दैट मॉडल, कितना ज्यादा लेयर्स हैं। अभी तो हमने 3-4 लेयर लगा के काम खत्म कर दिया था। सो देयर इज दिस डेंसनेट 201, इसमें 201 लेयर्स हैं। तो लोगों ने बहुत डेप्थ में बहुत बड़े बड़े मॉडल ट्रेन करे हैं अपने एंड पे, एंड फॉर सो मेनी नंबर ऑफ क्लासेस। तो जब उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत कर दी है, तो व्हाई डोंट वी डू सम स्मार्ट वर्क एंड पिक दैट मॉडल। अब उसी मॉडल को बस आखिरी के 2-3 लेयर चेंज करो, पीछे का मॉडल सेम रखो, एंड गेट द जॉब डन। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ ट्रांसफर लर्निंग। ये ट्रांसफर लर्निंग ऊपर मैं एडिटिंग कर दूंगा, इट इज नॉट मैक्स पूलिंग, इट्स अबाउट ट्रांसफर लर्निंग। सो द प्रैक्टिकल टिप इज दैट हम क्या कर रहे थे, इनिशियली हमारी जो इमेज थी वो छोटी हो रही थी। सो इफ यू रिमेंबर 7x7 की इमेज के ऊपर अगर आप 3x3 मैट्रिक्स लगाओगे तो आपका 5x5 बन के आ रहा था, जो ये वाइट रीजन है। बट नाउ इफ यू डू सम जीरो पैडिंग, जीरो लगा दो हर तरफ, चारों तरफ, इससे क्या होगा कि आपका जो फाइनल साइज आएगा वो चेंज नहीं होगा। ओरिजिनल साइज और फाइनल साइज विल बी 7x7 ओनली। तो एक तो ये पैडिंग का तरीका होता है कि आप पैडिंग कर दो, आपका साइज सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। सो देयर इज सम मोर प्रैक्टिकल टिप। एक स्ट्राइड नाम का चीज है। स्ट्राइड क्या होता है, कितना आप स्टेप ले रहे हो। अब नीचे देख, मतलब पहले ऊपर वाले दोनों इमेज देखो। सो दिस इज माई 3x3 मैट्रिक्स। आपने जस्ट एक स्टेप लिया एंड यू आर रीचिंग दिस पॉइंट, आपका सिर्फ एक ही फर्स्ट रो आपने क्रॉस करा है, एंड यू आर रीचिंग एट दिस पॉइंट। तो एक टाइम पे एक जंप मारा। अगर मैं एक टाइम पे 2 जंप मारूंगा, ये 3x3 पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे पहले 2 को छोड़ के वी हैव दिस थिंग, हमने 2 का जंप मारा, तो ये मेरा स्ट्राइड 2 है। तो स्ट्राइड्स भी मैटर करते हैं कि आप कितना स्ट्राइड कर रहे हो, कितनी जंप मार रहे हो एक बार में। ठीक है, तो उससे भी आपका साइज के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि फिर उतने ही ज्यादा कम नंबर्स आएंगे। अगर आप स्ट्राइड बड़ा रख रहे हो तो फिर आपके पास नंबर्स भी उतनी कम जनरेट होंगे। इस केस में आई थिंक इट द फाइनल आंसर विल बी 3x3, नीचे वाले के केस में स्ट्राइड 2 के साथ। स्ट्राइड 1 के केस में तो 5x5 था ही, वी सॉ इट अर्लियर। तो इससे फर्क पड़ जाता है स्ट्राइड से कि आप कितना बड़ा स्ट्राइड रख रहे हो, स्टेप साइज कितना कर रहे हो। ओके,
So coming to next slide. So this is the last slide from my side. इसके बाद practical करेंगे and then I will end the session. This is the last slide. इसके बाद कुछ पढ़ाई की बात नहीं है, just सीधा practical करेंगे. The slide says that we have another technique we can implement using the transfer learning. So that's called BART. अब यहाँ पे bottom पे देखो एक link है huggingface.co Facebook BART large CNN. ठीक है. So ये BART ना BERT का क्या वेरिएशन है. ठीक है. जैसे ट्रांसफॉर्मर्स है. सो मे बी यू डोंट नो, थोड़ा सा सर्च करना. एक ट्रांसफॉर्मर्स नाम की चीज है. आपने कल जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन किया था, यू कैन ऑल्सो डू दैट सेम सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग आरएनएन. आरएनएन के वेरिएशंस हैं. आरएनएन जैसे सीएनएन है वैसे ही आरएनएन है. RNN के variations are LSTM, GRU, Transformers, BERT, और BERT का भी आगे variations हैं जैसे ये BART, BART. तो there are many methods. तो इस केस में application यहाँ पे ये दिख रहा है कि transfer learning use करके आप अपने एंड पे ये वाला प्रोजेक्ट बना सकते हो that you can do some text summarization. तो इसको इतने बड़े टेक्स्ट को छोटा करके समरी बना दिया. ठीक है. So you will have to take care of the context and other things, but this kind of summarization is a very good project अगर आप अपने end पे बनाना चाहते हो. So let's go back to the coding part. So this is the final code of the day. This is the second code that we will be implementing. So after that the session will be over. I will take at max half an hour from you regarding this. So the second code is building AlexNet for Fashion Amnest. ठीक है जी. Okay, so let's go to this one. Reconnect. Just a second. ये कह रहा है एक टाइम पे एक ही बार जीपीयू चलाओ, एक ही कोड के लिए, मल्टीपल के लिए नहीं चलेगा. सो दिस कोड हैज ऑलरेडी बीन सेव्ड बाय मी, तो इसको मैं दोबारा रन नहीं करूंगा आपके सामने. दिस इज अ बिट लॉन्ग, पर थोड़ा सा शायद करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड ये डेटा सेट्स का कैसे मैं कर रहा हूँ काम. जस्ट अ सेकेंड. सो लेट्स कम टू दिस थिंग. नाउ वी हैव रिफ्रेश, यहाँ पे आ गया ये. ठीक है. So now we have this code in front of us in which we are actually going to implement the AlexNet. AlexNet का diagram is this. यहाँ पे AlexNet का diagram है बीच में. So this is the actual model that we need to implement. ठीक है. And this is kind of transfer learning because in the end मैं यहाँ पे 1000 की बजाय 10 कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास 10 क्लासेस हैं. जो ये ग्रीन बॉक्स है एंड में सॉफ्टमैक्स वाला, वी विल गेट दिस 10. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइज 227 227 3 एंड वी विल रीच द फाइनल साइज ऑफ 10 क्रॉस 10. Not 10 cross 10, but the final output will be the 10 classes. So okay, we will quickly run this code or understand it. Okay, so starting this, let me check the runtime. It's GPU only. System information, I have 16 GB GPU, Tesla T4. Import libraries. So I want to import this iPyplot because I will be using some variations of graphs. ठीक है. तो उसके लिए मेरे को ये पैकेज इंस्टॉल करना है. ये बाय डिफॉल्ट इसमें कोलैब में नहीं है, तो आई एम installing it and I'm only printing if it is successfully getting installed on the backend. So now I also want to import other things. ठीक है. तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं थी. So we have to import all these. जिसमें I can see that I have this NumPy. NumPy is one of the very famous library of Python for the numerical purposes. ठीक है. Numerical Python full form है इसका. This MATLAB plot library, तो ये MATLAB से लिया गया है, matplotlib. ठीक है. और you can also say I think it is matrix plot library. तो आप एक बार इसका डिटेल देख लेना फुल फॉर्म क्या है, बट इट इज हेल्पफुल फॉर ड्राइंग द फिगर्स. जो आपने प्लॉट्स बनाने हैं तो मैटप्लॉटलिब यूज करोगे. सो टेंसरफ्लो एसटीएफ, tensorflow.keras.util, तो हमें ये सब यूज करना है अपने मॉडल के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ये. ग्रे स्केल टू आरजीबी, ये मैंने किया था ट्राई, बट आई थिंक आई हैव नॉट यूज दिस. मैंने किसी और वे से उसको कॉमा 1 चैनल को कॉमा 3 चैनल बनाया था.
and there is this image data generator which will help us to actually resize the image 28 से हम सीधा 227 पे लेके जाएंगे। वो ये मेरा image data generator हेल्प करेगा लेके जाने में। import iPyplot जो ऊपर इंस्टॉल किया था उसको import करवा लिया, and the fashion MNIST dataset। अब ये fashion MNIST dataset क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। fashion MNIST, so fashion MNIST dataset is actually the advancement of the MNIST dataset। MNIST में क्या था कि अपने पास सिर्फ डिजिट्स थे, ठीक है, बट अब हमारे पास यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पे ऐसे शो नहीं करेगा, मैं गूगल सर्च करता हूँ। सो फैशन एमनेस्ट में अब अपने पास ऐसा कुछ है। सो वी हैव डिफरेंट क्लासेस जहाँ पे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, यहाँ पे ये री फोटोग्राफ। सो वी हैव ट्राउजर, वी हैव पुलोवर, वी हैव बैग, वी हैव एंकल बूट, ट्राउजर, ठीक है, ये कोट हो गया। तो मल्टीपल चीजें हैं, तो टोटल 10 हैं इसमें। तो हम इसके ऊपर कुछ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक साथ सब कुछ इंपोर्ट करवा लिया। नाउ आई वांट टू डू सम पार्टीशनिंग, तो मैंने क्या किया, फैशन एमनेस्ट डॉट लोड डाटा एंड आई हैव गॉट द 4 पार्ट्स। ये चारों पार्ट बहुत जरूरी हैं फॉर एनी एमएल और एनी डीप लर्निंग टेक्निक। मेरे पास वेरी क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरा एक्स ट्रेन क्या है, एक्स टेस्ट क्या है, वाई ट्रेन क्या है, वाई टेस्ट क्या है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी डन ऑटोमेटिकली बाय दिस कमांड। डेटा सेट का नाम डॉट लोड डाटा फंक्शन। सो नाउ आई वांट टू आल्सो लुक एट द साइज। साइज सेम है जैसे अपने पास उधर था, ठीक है, सेम साइज है, 60,000 इन ट्रेनिंग, 10,000 इन टेस्टिंग। उसका शेप देख लो, तो शेप भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो शेप इज लाइक दिस 2828, कॉमा 1 नहीं है यहाँ पे, कॉमा कुछ भी नहीं है। तो ये इसका बाय डिफॉल्ट शेप है। एंड इफ यू रन, लेट्स से मैंने यहाँ पे 18 इमेजेस रैंडमली पिक करी हैं, तो यहाँ पे ही इसने 18 इमेजेस यहाँ पे शो कर दिए कि मेरे पास सैंडल भी है, ये फीमेल वाले कपड़े हैं, या फिर ये स्वेटर है, बेली है, ठीक है, सब कुछ मतलब ऐसे वाला मल्टीपल हमारे पास इमेजेस हैं। तो ऐसे वाले के ऊपर हमने मॉडल ट्रेन करना, ना कि 0 1 2। अब वो थोड़ा सा गेम एक लेवल अप हो गया। तो 0 1 2 वाली चीज वो सिंपल, तो उसमें क्या था, एक 0 था, 1 था, 2 था, एक डिजिट था, सिंपल डिजिट। यहाँ पे तो उसको एक ऑब्जेक्ट पहचानना है कि ये जूता है या कपड़ा है या क्या है, जीन्स है क्या है, ठीक है। तो ऑल दोज थिंग्स विल बी प्रिडिक्टेड। तो उसको रीशेप कर लेते हैं, तो रीशेप करके कॉमा 1 डाल लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कॉमा 3 करके इसको बाद में रन करके देखना है। AlexNet will take the input of 3, ठीक है। तो लेट्स कंप्यूट द नंबर ऑफ लेबल्स। टोटल नंबर ऑफ लेबल्स चेक करने हैं, तो आप np.unique numpy.unique फंक्शन लगाओ बाई ट्रेन के ऊपर, तो नंबर ऑफ यूनिक लेबल्स आ जाएंगे। मुझे पता है 10 लेबल्स हैं इसमें। और एक वन हॉट वेक्टर होता है, मैंने बताया था, वन हॉट इनकोडिंग होती है जिसमें वी आर एक्चुअली कन्वर्टिंग आवर डेटा सेट इनटू द फॉर्म के, भाई मेरा वो क्या था, मतलब 0101 के फॉर्म में क्या होगा। लेट्स सी मैं यहाँ पे आपको वाई ट्रेन दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है दिखने में। सो इफ आई, हाँ, अब यहाँ पे ये देखो, वाई ट्रेन में एक में ये 1 है एंड में, एक में, दो में शुरू में है, किसी किसी में बीच में होगा, इसलिए आपको 0 0 0 पूरा दिख रहा है, बट कहीं बीच में कहीं पे 1 होगा, ठीक है, ये इसके शुरू में है। तो सिंपल नंबर होने के बजाय हमने ऐसा एक वेक्टर सा बना लिया इसको, ठीक है। एंड नाउ ट्रेन आफ्टर मेकिंग टू कैटेगोरिकल, तो वाई ट्रेन और वाई टेस्ट को देख रहे हैं हम कि मेरा जो वाई ट्रेन है वो कैटेगोरिकल में बनाने के बाद उसका शेप 60,000 कॉमा 10 हो गया, जो इनिशियली 60,000 कॉमा नथिंग था। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कॉमा के बाद कुछ नहीं था, तो वो कॉमा 10 हो गया इस केस में भी और इस केस में भी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसमें वी हैव द इमेज डायमेंशंस। तो इमेज डायमेंशन के लिए मैंने इमेज साइज देखा कि यार इसका साइज क्या 28 है, ठीक है, तो इस कमांड से मैंने रन करके देख लिया, एक्सट्रेन का शेप 1 निकाल लिया। सो नाउ दिस इज द आर्किटेक्चर दैट वी वांट टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इस आर्किटेक्चर को अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, इट इज़ वेरी क्लियर कि मुझे 227 3 से शुरू करना है। उसके अंदर 11 11 का फिल्टर लेना है, 96 कर्नल लेने हैं, तो 96 मतलब 11 11 96 ऐसे कुछ करके होगा, और बीच में ये सॉल्व करके आउटपुट साइज लेके आ रहा है 55। ये फॉर्मूला है, दिस इज n माइनस एफ डिवाइड बाई एस प्लस 1। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है, अब ये यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं हुआ,
but if you match the numbers, 227 is n, 11 is my f, 4 is my stride, so divide by s and minus f upon s plus 1. ठीक है, तो this is the final output size. इस केस में 55 आ जाएगा and 96 है number of kernels. ये सेम है जैसे पिछली बार एक बार 32 आया था हमारा, 26 आया था, यहाँ पे 96 आ रहा है. अगेन यू विल डू सम मैक्स पूलिंग. तो मैक्स पूलिंग 3x3 का कर रहे हो, तो स्ट्राइड 2 है, तो वो सब करने के बाद आपका साइज आधा हो जाएगा. ठीक है, तो जब आप ये करोगे आपका साइज इज 27 96 इन लेंथ. सिमिलरली ऐसे करके आगे चले जाओगे. तो दिस इज द आर्किटेक्चर. इसको मुझे इंप्लीमेंट करना है एंड दिस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द 10 क्लासेज ओनली. यहाँ पे 1000 है. सो कमिंग टू द एलेक्सनेट डेफिनेशन, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने बना बनाया पीछे से नहीं उठाया. मतलब मैं पूरे का पूरा मॉडल खुद ट्रेन कर रहा हूँ. एक तो तरीका था कि बना बनाया मैं कहीं से इंपोर्ट करवाता और उसके सिर्फ एंड वाली लेयर चेंज करके बाकी सारा मॉडल एज इट इज रन कर देता. उसमें फ्रीज करना पड़ता कुछ लेयर्स को. जैसे कुछ लेयर्स को मैंने छेड़ना ही नहीं है, तो इतने पार्ट को उसको फ्रीज कर दो, बस नीचे नीचे थोड़ा सा चेंज कर दो, ये कर सकते थे. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आर्किटेक्चर एज इट इज उठा लिया. है तो ये ट्रांसफर लर्निंग है, किसी का बनाया हुआ आर्किटेक्चर उठाना ट्रांसफर लर्निंग हुआ. ठीक है, बट देन आई एम डूइंग इट फॉर माई ओन 10 क्लासेज ओनली. ओरिजिनल आर्किटेक्चर में 1000 था, तो मैंने जो जो उसने बोला था एज इट इज मैंने सब कुछ लिख दिया इसमें. ठीक है, तो स्ट्राइड्स लिख दिया, इनपुट साइज लिख दिया, सब कुछ दे दिया. 96 है, 11 है, सब कुछ लिख दिया मतलब एज इट इज. तो नाउ इफ आई रन दिस, आई हैव defined my model AlexNet equal to this. Okay, we are done with that. So if I want to visualize that model, तो मैं उसको AlexNet ऐसे करके उसको सेव भी कर सकता हूँ और इसको मैं प्लॉट कर सकता हूँ. प्लॉट दिस मॉडल, शो शेप्स इक्वल टू ट्रू. तो इसको रन करके मेरे पास ऐसा कुछ बन जाएगा. जस्ट अ सेकेंड. सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. तो एक पूरा आर्किटेक्चर यहाँ पे आ गया. आई हैव इंटेंशनली मेड द फॉन्ट स्मॉल, बट यहाँ पे एक बेसिक सा आइडिया समझ में आ रहा है कि मेरे पास ऐसे करके मैं इनपुट आउटपुट ये सब मैप कर सकता हूँ और मेरा पूरे का पूरा डायग्राम मेरे को ऐसे शो हो जाएगा कि मेरे पास इनिशियली कितना था, इनपुट कितना, आउटपुट कितना है. ठीक है, तो ऐसे करके पूरा डायग्राम शो हो रहा है. दिस इज माई एलेक्सनेट. तो कमिंग बैक टू द मॉडल कंपाइलेशन प्रोसेस, अभी तक हमने डेटा सेट इंपोर्ट करा हुआ है बट इमेज के फॉर्म में नहीं अभी कन्वर्ट करा. सो दैट इज वन ऑफ द चैलेंज. तो उसके लिए मैंने एक और आपके लिए एक चीज ढूंढ के रखी है, यहाँ पे अगली लाइन में लिखा हुआ है. बट बिफोर दैट आई वांट टू हाईलाइट द मॉडल कंपाइलेशन. सो मॉडल कंपाइलेशन क्या कह रहा है, वी हैव टू define the loss is my categorical cross entropy. In this case we are actually doing one hot encoding vector. तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी करना जरूरी है. ठीक है, इन दिस केस 10 क्लासेस हैं तो उसको वो 0001 जो भी वेक्टर था पूरे वेक्टर को वो संभाल लेगा ऐसे करके कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी में. ऑप्टिमाइजर इज एडम एंड एक्यूरेसी हम मैट्रिक रख रहे हैं कि मुझे एक्यूरेसी के बेसिस पे चेक करना है. आफ्टर दैट आई वांट टू इंपोर्ट द डेटा सेट. अब इंपोर्ट द डेटा सेट कहाँ से करा मैंने, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. किसी एक बंदे ने मेरे लिए, मतलब हमारे लिए पीएनजी में कन्वर्ट करके दे दिया था उस एक्सेल शीट को. तो क्योंकि मेरे को पता था कि यार मेरे को ना एक तो इमेज का साइज का इशू पड़ेगा, मुझे करना है 227 227 3. और जो हम ऊपर गेम खेल रहे थे अब तक हम कॉमा 1 के साथ खेल रहे थे. यहाँ पे ये रहा देखो, यहाँ पे अपने पास कॉमा 1 था. ठीक है, तो कॉमा 1 से बात तो बनेगी नहीं, मुझे तो 3 वाला साइज चाहिए था. तो एटलीस्ट मेरे को इमेज तो मिल जाए, इमेज के बाद मैं उसके आगे वो मेरा काम है कि मैं उसको 1 को 3 कैसे करूं. बट यहाँ पे अगर आप डेटा डॉट जिप के अंदर जाओगे तो डेटा डॉट जिप को अगर आप डाउनलोड कर लोगे अपने एंड पे, उसको अनजिप करके देखोगे, यू विल फाइंड दैट देयर इज दिस डेटा सेट जिसमें ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दोनों चीजें हैं. ठीक है, तो मैं इस पे आता हूँ वापस. यहाँ पे हो रखा है इसलिए वो ट्रेनिंग टेस्टिंग ईजी होगा दिखाना. जस्ट अ सेकेंड. हाँ ये रहा. तो सपोज मेरे पास वो डेटा सेट था, मैंने उसको अपलोड कर लिया अपने गूगल ड्राइव पे और उस गूगल ड्राइव से डॉट जिप फाइल को मैंने अनजिप कर लिया. तो ये अनजिप करने का तरीका होता है. तो आई विल क्विकली शो यू दैट हाउ आई एम डूइंग इट. लेकिन यहाँ पे पंगा ये पड़ेगा दैट मेरे पास वो गूगल ड्राइव अलग थी अकाउंट, ये अलग अकाउंट है. So just a second, what I will do is I will drag and drop that zip file into this file section and then we will be able to do the job. Just a second. उसको थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड होने में. मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा फाइल को, तो यहाँ पे ये देखो ये घूमना शुरू हो गया है. ठीक है, फैशन एमनेस जिप, ये अपलोड होगा यहाँ पे अब फाइल. ठीक है जी, एक कैगल पे भी मैंने किया था इसको रन.
83% एक्यूरेसी। कैगल पे भी हम रन कर सकते हैं अपने कोड को, बट वी आर राइट नाउ वर्किंग इन कोलैब। तो यहाँ पे ही अपलोड होना शुरू हो गया, तो इट इज़ अराउंड 40 MB। थोड़ा जल्दी होना चाहिए, बट कोलैब थोड़ा स्लोली अपलोड करता है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि वो इमेज के साथ मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन एक बार यहाँ पे इसको आने दो, फिर मैं ये वाला एक बार थोड़ा रन भी करके दिखा दूंगा आपको। जस्ट अ सेकेंड। अनजिप वाला प्रोसेस करके दिखाना है मेनली, तो क्योंकि उसमें आपको शो हो जाएगा कि हाँ ठीक है, अगर मैं अनजिप करूंगा तो वो एक्सट्रैक्ट करके एक एक इमेज को लेके आता है। ठीक है, तो मैं आपको लाइव दिखा दूंगा, एक बार इसको अपलोड होने दो। तब तक लेट्स डिस्कस द अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल, मैंने वो जो अपलोड करूंगा मैं उसको मैं अनजिप भी कर लूंगा। ठीक है, आई विल अनजिप दैट थिंग एंड इट विल बी एक्सट्रैक्टेड। तो ये काफ़ी लंबा है, बहुत सारी इमेजेस थी ट्रेनिंग टेस्टिंग में। सो आफ्टर ऑल ऑफ दैट मेरे को उसको रीशेप करना है और नॉर्मलाइज करना है। मतलब हमने क्या किया था, हमने CSV फाइल को रीशेप किया था। ठीक है, एंड दैट वाज रीशेप्ड इनटू 28x28 पिछले वाले हमारे प्रोसेस में जो हमने पहला कोड चलाया है। बट इन दिस केस आई वांट द साइज टू बी 227 तो यहाँ पे देखो, एक तो ये टारगेट साइज मैंने बता दिया, मैंने क्लास मोड बता दिया, मैंने बैच साइज बता दिया। बैच साइज यहाँ पे बहुत बड़ा रखा है मैंने, 20 30 50 से बात नहीं बनेगी, बिकॉज मेरे पास नंबर ऑफ इमेजेस आर 60,000। तो अगर मैं 500 ना रखता तो मेरी बहुत स्लो हो रहा था प्रोसेस मेरा, जो मैं इसको मॉडल को ट्रेन कर रहा था। सो नाउ रीशेपिंग एंड नॉर्मलाइजिंग क्या कर रहे हैं हम। एक तो हमने उसको रीस्केल कर दिया, नॉर्मलाइज हो गया पहली लाइन में। ठीक है, 1/255 करके उसको हमने पिक करवा देना है, फोल्डर को, ट्रेन वाले को, उसको रीस्केल कर दो, उसको रोटेशन कर दो, उसकी विड्थ शिफ्ट कर दो, हाइट शिफ्ट कर दो। तो ये सब ऑगमेंटेशन है। आप अपने डेटा सेट को थोड़ा सा अच्छा बना रहे हो, उसको थोड़ा सा जूम इन कर लो, जूम आउट कर लो, उसको टेढ़ा कर लो। ये शेयर क्या होता है, शेयर का मतलब टेढ़ा करना होता है। ठीक है, कीपिंग द बेस सेम, आप सिर्फ अपने प्रिपेंडिकुलर्स को थोड़ा सा स्लांट कर देते हो, उसको शेयर कहते हैं। तो आपने अपने इमेजेस को एक तरह का ऑगमेंट कर दिया इमेज डेटा जनरेटर के थ्रू, सो दैट योर मॉडल कैन ट्रेन इन ए बेटर मैनर। तो आपने ट्रेनिंग डायरेक्टरी एज इट इज पास करी इन द जनरेटर, और उसने क्या किया, अपने पीछे फोल्डर में से 1 by 1 सब उठाया, बैच साइज 500। उसने एक बार में 500 फोटो उठाए, क्लास मोड कैटेगोरिकल, क्योंकि मेरे पास कैटेगरीज 10 हैं, टारगेट साइज 227 वो इसकी टेंशन है, वो अपने आप पीछे बैकएंड पे उसको कॉमा 3 कर लेगा। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर द वैलिडेशन ऑल्सो, आपने टेस्ट वाला, जैसे दो फोल्डर थे, एक ट्रेन था एक टेस्ट था, तो टेस्ट वाले में आप ये वाला पाथ यहाँ पे डाल दोगे एंड यू विल डू द सेम जॉब। रीस्केल करने के अलावा कुछ नहीं करना, क्योंकि आप टेस्टिंग कर रहे हो तो आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना चाहते, तो ये वाली चीज आप मिस कर दोगे। यू विल ओनली रीस्केल और उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, एंड देन यू कैन पास ऑल दोज वैल्यूज सेम थिंग्स। नाउ अगर आप उसको रन कर लोगे इस जनरेटर को, ये सब इमेज डेटा जनरेटर का काम है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद योर डेटा सेट विल बी रेडी इनटू 227 वाला साइज, एंड इट इज सेइंग दैट 60,000 इमेजेस मेरे को मिली हैं 10 क्लासेस में ट्रेनिंग में, एंड यहाँ पे 10,000 मिली हैं टेस्टिंग में। ठीक है, तो ये उसने अपने एंड पे प्रिंट करके हमें बता दिया है। नाउ वंस यू स्टार्ट जनरेटिंग योर मॉडल, आप इसको जब रन करोगे, यू हैव द ट्रेन जनरेटर जो आप इनपुट दे रहे हो अपने डेटा सेट की, 5 epochs। मैंने इसको पहले 10 किया था, बट आई विल टेल यू द एग्जैक्ट रीजन व्हाई आई हैव पुट दैट एज 5। वर्बोस के 3 वर्जन होते हैं, 0 1 2। 1 वाला का मतलब है कि ये इतना डिटेल में हमें नंबर देगा, 0 वाला 2 वाला इतना डिटेल में नहीं देता। तो आप 0 और 2 भी करके देख लेना, क्या फर्क पड़ता है देख लेना। ठीक है, तो मैंने वर्बोस 1 रखा है, आउटपुट की डिटेल पे फर्क पड़ता है। वैलिडेशन डाटा इक्वल टू वैलिडेशन जनरेटर, तो मतलब ट्रेन करना है और उसको टेस्ट करने के लिए वैलिडेशन जनरेटर वाला डाटा उठवा दो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। जब मैंने मॉडल ट्रेन किया, बिकॉज मैं एक बार में 500 में सेंड कर रहा था, तो उसने 120 ही पॉक करे। ठीक है, 60,000 डिवाइड बाय 500, 120, बट टाइम वॉज 799 सेकेंड्स, तो नियरली 13 मिनट्स लग रहे थे मेरे को एक ही पॉक रन करने में। ठीक है, सो माई training loss is equal to this, training accuracy this validation loss this, validation accuracy this। ये पहले ही पॉक के बाद है। तो ओवर टाइम हम देखेंगे कि मेरा लॉस गिर रहा है। ठीक है, लॉस हर बार नीचे आ रहा है, एक्यूरेसी मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर जा रही है। ठीक है, नियरली हर बार ही ऊपर जा रही है, 55 69 74 76 78। एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी भी जैसे 29 इनिशियली था और पांचवी पॉक के बाद 62 है। तो यू कैन ऑल्सो प्लॉट देम। एक हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री नाम की चीज होती है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, ये अभी तक अपलोड ही हो रहा है, मैं अभी दिखाना चाह रहा था, पर वो मॉडल ट्रेन होने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसको
13 मिनट का अगर एक ही पॉक है तो इट विल टेक 1 hour and 5 minutes टू ट्रेन ऑल ऑफ दिस। तो मैं इसको ट्रेन तो नहीं करूंगा आपके सामने, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री क्या करता है, यहाँ पे राइट साइड पे राइट हाफ ऑफ द स्क्रीन में एक पूरा मैट्रिक्स सा बना आ जाता है कि मेरे पास एक्यूरेसी बी वैल्यू है, मतलब जो जो इसने यहाँ पे वैल्यू निकाले ना, ये ट्रेनिंग लॉस, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस, वैलिडेशन एक्यूरेसी, तो इसने चार चार एरे बना देने हैं इस चीज के। तो इन चारों एरे को वो रन करके दिखाएगा, मतलब रन क्या करेगा, वो हमारे सामने रख देगा कि मेरे पहले एरे में इतने वैल्यूज आए हैं 5, अगले एरे में ये वैल्यूज आए हैं, तो मैंने उन्हीं को यूज करा। तो मैंने क्या करा, मैंने एक तो इसको यहाँ से ध्यान से देखो, वी हैव हिस्ट्री इक्वल टू समथिंग, तो हिस्ट्री इक्वल टू समथिंग में वी हैव इंस्टॉल्ड ऑल ऑफ दिस, जितना भी हमने किया था ट्रेनिंग मॉडल, वी हैव पुट एवरीथिंग इन द हिस्ट्री, एंड दैट हिस्ट्री में से हम वैल्यूज उठाएंगे, हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री का एक्यूरेसी, हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री का एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी, लॉस, वैलिडेशन लॉस। तो एक तो मैंने उसका लेंथ देख लिया, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना था तो मेरे को उतना जाना था राइट लेफ्ट तक, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट साइज के लिए मैंने उसका इपॉक देख लिया, रेंज देख लिया, एंड आई हैव प्लॉटेड ऑल द वैल्यूज। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, द फर्स्ट ग्राफ सेज दैट द ट्रेनिंग एक्यूरेसी इज इंक्रीजिंग एंड द वैलिडेशन एक्यूरेसी इज आल्सो इंक्रीजिंग, स्टिल देयर इज गैप, थोड़ा सा ओवरफिटिंग हो रहा है, बट ये दोनों क्योंकि ट्रेंडिंग ऐसा है कि अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अभी और ट्रेन हो सकता है। तो मैंने 5 इपॉक के लिए किया था, यू कैन डू इट फॉर मोर, ठीक है। 5 की बजाय आप 10 इपॉक के लिए करके देखो, 15 के लिए करके देखो, इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली दिस ग्राफ इज मूविंग अपवर्ड्स। लॉस क्या कर रहा है, लॉस के केस में नीचे जा रहा है, लॉस कम होना चाहिए, एरर कम आना चाहिए, तो ये भी इंप्रूव हो रहा है, बल्कि इसमें गैप कम है, ठीक है। बट ओवर टाइम दिस इज ऑल्सो गोइंग डाउनवर्ड्स। यहाँ से ये पता चलता है कि मैंने इपॉक्सी कम चलाए थे, अगर 10 इपॉक्स चलाए होते तो बात कुछ और होती, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज द कोड विच आई वांटेड टू इम्प्लीमेंट फॉर यू। तो आपके पास इस कोड का लिंक भी मैं चैट बॉक्स में दे देता हूँ, ठीक है, so that you can implement these codes on your end and you can get the job done. अब इसका ये फायदा होने वाला है that now you have this thing, you have the transfer learning wala also, and you have the basic ANN, the CNN, but more things I want to show you. Because of the less time I could not discuss all the things. In my GitHub within the deep learning folder we have multiple things here. तो मैंने एक यहाँ पे इन माई यूनिवर्सिटी, एक तो मैंने उस उनको बच्चों को ये करवाया था कि बायोएलएसटीएम यूज करके वी हैव टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट 100 वर्ड्स। तो यहाँ पे एक डेटा सेट है, इस डेटा सेट के बेसिस पे आई ट्रेंड माई मॉडल, ठीक है। तो ये शेक्सपियर का डेटा सेट है, तो इसमें बहुत कुछ है शेक्सपियर का। तो बेस्ड ऑन दिस इनपुट मैंने मॉडल ट्रेन किया, मैंने एलएसटीएम लगाया, सब कुछ किया अकॉर्डिंग टू एनएलपी, जैसे आपने कल सीखा था। उसमें आपने यही सब किया होगा कि आपने उसको पहले उसकी टोकनेशन कर ली, फिर उसके आपने नंबर्स जनरेट कर लिए, फिर आपने उसका पैडिंग कर दी, उसको पैड सीक्वेंस सेट कर दिया, एंड देन यू इम्प्लीमेंटेड योर डीप लर्निंग मॉडल। या फिर आपने लगाया नहीं अभी, बट आप लगा सकते हो सेम चीज़, ऐसे जो कल किया था उसके ऊपर ये वाला चीज़ लगा सकते हो। आई ऑल्सो टोल्ड यू इन माई टॉक दैट यहाँ पे मैंने क्या किया था, जस्ट अ सेकेंड, इन माई रेपोजिटरी इन दिस वर्कशॉप इन माई मॉडल व्हेन आई एम राइटिंग द कोड, मैं यहाँ पे अपने मॉडल में ये कर रहा हूँ, हर बार सीक्वेंशियल के अंदर ही तीनों चीजें कॉमा डाल के करी हैं। बट इस कोड में देखो हर बार डॉट ऐड फंक्शन लगाया है, क्योंकि मैंने फंक्शन यहीं पे ऊपर बंद कर दिया था सीक्वेंशियल। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो आप ये सब कर सकते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट आई हैव रन इट फॉर यू। इसको थोड़ा सा आप देख लेना अपने एंड पे, कि आप अगर सपोज इनपुट वर्ड देते हो, इतना लिख दिया attributed the index, then you have the next 100 words in front of you. So there are many applications in my GitHub, you can explore it on your end, and there are few recordings also available on my channel, on my YouTube channel, so you can also check out those videos, so that in my deep learning playlist especially you have all these explanations, ठीक है। तो जिसको थोड़ा कम समझ में भी आया है उनका भी हो जाएगा। सो लेट्स रैप अप दिस वन। सो यहाँ पे जैसे मैंने डेटा सेट यहाँ पे अपलोड कर दिया, सो आई हैव टू इम्पोर्ट दिस डेटा सेट। तो मैं इसका ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके कॉपी पाथ करूंगा, एंड आई कैन अनजिप दिस थिंग, ठीक है। तो मैं इसको पेस्ट करके अनजिप कर देता हूँ। अनजिप करूंगा तो ये अनजिपिंग इसने शुरू कर दी। सो बाकी तो कोड सेम है ऊपर नीचे का, यू कैन डू इट ऑन योर एंड। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।
Thank you so much, Dr. Sahil Sharma. Sir, thank you so much for today's session. It was really very informative session. Thank you so much, sir. And guys, if you have any query regarding today's session, you can ask to sir right now. You can ask sir to sir in chat box. Yeah, I am open for questions now. We have 20 minutes. So if you want to spend these 20 minutes, you want to ask some doubts, you can ask. Hanji, any doubt? Repeat CNN and ANN. Okay, पूरा कोड रिपीट करना है. मैं थोड़ा बता देता हूँ जल्दी में. अब देखो, ANN क्या करता था. ANN में अपने पास सिर्फ फ्लैटन लेयर था और फुली कनेक्टेड लेयर था. कुछ कन्वोल्यूशन नहीं था, कुछ मैक्स पूलिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था. बहुत सिंपल सी चीज है. प्री प्रोसेसिंग कर लिया, फ्री हो गए. यू हैव टू जस्ट रन. एक तो फ्लैटन कर लो, क्योंकि आपको जो इनपुट इमेज आया है दैट हैज बीन इन द शेप ऑफ 28281. मैंने ये बोला था. तो अब 2828 को फ्लैटन आउट कर दो. तो फ्लैटन आउट करोगे तो 784 हो जाएगा. ठीक है. तो इस केस में जब आप इसको रन करोगे, ANN वाला, ANN का आर्किटेक्चर यहाँ पे नहीं समरी किया हुआ, बट अगर आप उसको करोगे, मैं एक सेकंड लेके जाता हूँ आपको उधर. ओपन नोटबुक ANN. It will take me just a second. I will show you the summary of ANN also. जैसे CNN का दिखाया था. Runtime GPU. Just a second. Okay. अब हो जाएगा ये. Right now disconnecting, initializing. Okay, done. So now NVIDIA SMI ठीक है. And if I run this quickly, आपको मैं एक बार ANN का समरी भी दिखा देता हूँ. अब जैसे देखो, यहाँ पे अपने पास CNN का मैंने लिखा हुआ है CNN.summary. तो अगर यही लाइन में यहाँ पे ऊपर भी लिख दूंगा, कंपाइल वाला तो हमने बाद में किया ही हुआ है, तो मैं यहाँ पे CNN डॉट की बजाय ANN डॉट समरी कर देता हूँ. सो आई वांट टू सी दैट हाउ इट लुक्स लाइक. तो मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ. द समरी लुक्स लाइक दिस. मॉडल हैज नॉट बीन बिल्ट येट. एक सेकेंड. तो ये ऐसे यहाँ पे हमने tf.keras.model किया था. इसने इनपुट तो वैसे नहीं लिया, तो ये अपने एंड पे ठीक कह रहा है कि मेरे को फ्लैटन आउट आप कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो. ठीक है. इसको इनपुट तो नहीं मिला, तो या तो मैं इसको इनपुट दूं पहले. तो उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा इनपुट वाला शेप. तो कन्वोल्यूशन क्यों लगाऊं मैं, पर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज सेम. तो यहाँ पे ये रन क्यों नहीं हो रहा. एक सेकंड. आई विल रीस्टार्ट एंड रन ऑल. तो मैं फ्लैटन नहीं करता. फ्लैटन करूंगा तो ये शायद फिर एरर दे देगा. अगर मैं सिर्फ इसके बेसिस पे करूं कि मैं इसको बाद में कर लूंगा, अभी इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, फिर ये शायद शो कर देगा. ये अभी भी नहीं कर रहा. इट इज सेइंग कि पहले बिल्ड करो. इसका ANN का शायद रूल अलग है, बट ANN समरी नहीं दिखा रहा, वो सिर्फ CNN दिखाता है. ओके. सो आई विल नॉट शो यू द समरी. बट अगर मैं इसको रन करके आगे जाऊंगा, तो मेरा मॉडल जब रन हो रहा था, एक तो CNN वाला पार्ट था. CNN में आता हूँ, वापस आऊंगा. बट ANN में वी हैव 2-3 थिंग्स. एक तो हमने फ्लैटन आउट किया. जो भी मेरे पास इनपुट आएगा उसको मैंने फ्लैटन करके एक स्ट्रेट लाइन में लेके आना है, एक 1D array बनाना है. एंड आफ्टर दैट आई हैव टू कनेक्ट इट टू द फुली कनेक्टेड लेयर विच इज लेट्स से 32. तो इस 32 के साथ मैंने, सपोज मेरा जो भी इनपुट था, इट कैन बी 400, इट कैन बी 784, जितना भी था उसको हम लिंक करेंगे 32 से, मैक्सिमम कनेक्शन बनाएंगे. एंड द फाइनल डेंस लेयर विल हैव 10 नोड्स विच इज द आउटपुट. ठीक है. एंड सिमिलरली CNN में भी हमने जैसे पूरा डिस्कशन किया था, दैट इनिशियली लेट्स से माय साइज इज 2821, my number of filters are 16, my filter size is 33,
and the output size will be 26, 26, 16 depending on the instructions जो भी हम दे रहे हैं यहाँ पे. तो ये पूरा जो समरी है यहाँ पे बना हुआ है. ठीक है. तो अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे. जस्ट अ सेकेंड. जैसे यहाँ पे हमने प्लॉट मॉडल किया था, उसमें पूरे का पूरा आर्किटेक्चर ही शो हो गया था इन बॉक्सेस. तो आप ये वाली चीज़ भी कर सकते हो अपने एंड पे. जस्ट अ सेकेंड. इससे पहले था क्या? ये वाला. तो आप ऐसे वाला भी आर्किटेक्चर देख सकते हो. उससे क्या होगा कि आपको इनपुट आउटपुट पता चलेगा कि इनिशियली क्या था. इनिशियली 227 था, फिर वो 55 हुआ, फिर 55 से 55 रहा क्योंकि आपने सेम रखा. बैच नॉर्मलाइजेशन में तो वैसे भी साइज चेंज नहीं होता, नॉर्मलाइजेशन हो रही है बस. मैक्स पूलिंग में आपका साइज हाफ हो गया. कन्वोल्यूशन में इनिशियली इनपुट आउटपुट सेम है बट देन द साइज इज अफेक्टेड व्हेन द मैक्स पूलिंग कम्स. तो ये सब जैसे डायग्राम है, ऐसे ही आप इधर भी डायग्राम बना सकते हो. इस वाले में इस चीज का डायग्राम बना के देख लेना, सेम कमांड उधर वाले लगा के, यू विल फाइंड द थिंग्स. ठीक है. तो मैं इसको रन करके देखता हूँ. तो ये हो गया. ठीक है. अब कॉल बैक में यही था दैट वी आर एक्चुअली पुटिंग द कंडीशन दैट व्हेन ट्रेनिंग माय मॉडल आई वांट टू स्टॉप एट 95% एक्यूरेसी. तो ट्रेनिंग मेरे को 95 से ज़्यादा चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे को मेन है कि मेरे टेस्ट डेटा सेट पे वो अच्छा परफॉर्म करे. सो इन दिस केस वी आर एक्चुअली कंपाइलिंग एंड मॉडल फिटिंग, और उसका फ्रेंड में हम चेक कर रहे हैं वैल्यूएट करके. सो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर डन टुगेदर. तो जब आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो तो आप बेस्ड ऑन सम ऑप्टिमाइजर. एक सेकंड, मैं ना इसको इस बार एसडीडी की बजाय एडम लिख देता हूँ. तो मैं एडम ऑप्टिमाइजर लगा के रन करता हूँ इसको. तो एडम लगाती ही इसका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो गया, और ये शायद 95 क्रॉस कर जाएगा थर्ड टाइम में. हाँ, तो ये भी रुक जाएगा. तो हमने जैसे यहाँ पे एसडीडी लगाया था, तो पिछली बार मेरा सीएनएन में थर्ड टाइम पे रुका था. एएनएन पे तो रुका ही नहीं था एसडीडी लगा के. बट नाउ मैंने एएनएन में एडम लगा दिया एंड वी हैव दिस थिंग. ये थर्ड टाइम पे 95 क्रॉस कर गया. अब सेम चीज़ मैं करता हूँ, मैं इसमें एडम लगा देता हूँ. तो अगर मैं एडम ऑप्टिमाइजर लगाऊंगा तो पिछली बार थर्ड टाइम पे हुआ था सीएनएन से. इस बार देखते हैं कि कितनी बार में 95 क्रॉस करता है. ठीक है. एडम थोड़ा सा बेटर है एसजीडी विद मोमेंटम प्लस आरएमएस प्रॉप, तो उसने वो सारा इकट्ठा कर देना है. तो इसका देखते हैं. पिछली बार थर्ड टाइम पे 95 क्रॉस था, इस बार तो सेकंड टाइम पे हो गया. 96, 97 टच कर रहा है ये. तो अभी सेकंड टाइम के बाद रुक जाएगा. या दैट्स इट. वेयर कैन वी गेट सम सैम्पल डेटा सेट्स. सो डेटा सेट्स के लिए देखो, कैगल से अच्छा वेबसाइट नहीं है. ठीक है. एंड अदर, अगर कोई और वेबसाइट देखना है तो फिर यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर गूगल डेटा सेट्स. तो गूगल डेटा सेट्स नाम की एक वेबसाइट है. नॉट दिस वन. जस्ट अ सेकेंड. अगर मैं गूगल डेटा सेट्स करता हूँ, हाँ ये वाला है. तो डेटा सेट रिसर्च, ये ऐसा कुछ करके वेबसाइट है. डेटा सेट search.research.google.com. तो मैं इसका चैट बॉक्स में लिख देता हूँ so that you can also search some good data sets on this website. Just a second. हाँ जी. The difference between CNN and ANN is that only that हमारे पास ANN में सिर्फ डेंस लेयर्स हैं. ठीक है. फ्लैटन आउट करके आप डेंस लेयर लगा के काम खत्म कर रहे हो. आपके पास कुछ भी कॉन्वोल्यूशन नहीं हो रहा, मैक्स पूलिंग नहीं हो रहा. तो बहुत सारे फीचर्स हैं CNN के जो CNN करता है बट ANN नहीं करता. हाँ जी. एनीवन एल्स, एनी अदर डाउट? ओके. So that's it from my side then. Thank you. Okay. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, Once ma'am. again, thank you so much. Yeah. Thank you so much, sir, for such an amazing session. Now I request Dr. Sahil Vashisht, Dean R&D Cell and Head CSC, to deliver a vote of thanks. Maybe there's some network issue.
So and this presence, it was amazing having you here, and it was such an session. Yeah, thank you everyone. So I think we should end the session now. Yes, sir. Okay, thank you. I'm ending the session. I'm also stopping the recording now. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you so much.